اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ المائدہ کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورہ المائدہ یہ اس گروپ کی آخری سورہ ہے۔ اس گروپ کی آخری سورہ ہے یہ کہ صورتیں نازل ہوتی ہیں، مکی دور سے آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد مدنی دور میں کچھ صورتیں جو ہے نا نازل ہوتی ہیں، اور ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مکی دور میں نازل ہوتی ہیں، اور اسی طریقے سے ایک یا ایک سے زیادہ صورتیں مدنی دور میں نازل ہوتی ہیں، اور اس طریقے سے ان صورتوں کو ایک گروپ میں جو ہے نا پرو دیا جاتا ہے۔ اس طرح پورے قرآن مجید پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو یہ 7 گروپس ہیں، یعنی اگر آپ دیکھیں مکی اور مدنی صورتوں کے اس طریقے سے جو یعنی گروپس بنتے ہیں وہ 7 ہیں، اور یہ پہلا گروپ ہے اس کی آخری سورہ سورہ مائدہ جس کا آغاز ہم کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ مکی دور کی سورہ ہے، اور اس کے بعد باقی باقی یہ چاروں جو صورتیں ہیں یہ کہ بقرہ، اس کے بعد آل عمران اور النساء اور یہ سورہ مائدہ یہ مدنی دور کی ہیں۔ اور مدنی دور میں زیادہ تر آپ نے دیکھا کہ جہاں مسلمانوں کا تزکیہ ہوتا ہے وہیں پہ جو اہل کتاب ہیں وہاں پہ جو مقامی لوگ ہیں ان پہ اتمام حجت ہوتا ہے۔ میں بجائے اس کے کہ اس کا صورتوں کا انٹروڈکشن یعنی جو کچھ میں نے پڑھا اس کی بنیاد پہ کروں، میں آپ لوگوں کے سامنے یہ انٹروڈکشن البیان ہی کی جو ہے نا جو سورہ النساء کے شروع میں یہ بیان کیا گیا تھا انٹروڈکشن، وہی میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یعنی صورتوں کا ایک گروپ جو ہے جیسا کہ بتایا کہ 7 صورتوں کا ایک مجموعہ بنتا ہے، گروپ بنتا ہے، تو سوری ایک گروپ جو ہے وہ مکی اور مدنی صورتوں سے مل کے گروپ بنتا ہے۔ اسی طریقے سے صورتیں آپس میں جوڑا جوڑا بھی آتی ہیں، توام بن کے بھی آتی ہیں، یعنی توام بن کے آنا، جوڑا جوڑا بن کے آنا، جس طرح ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا جوڑا صورتیں تھیں، یعنی ایک کے تھیم دوسری کے سورہ کے تھیم کے اندر جو ہے نا اس طرح ملے ہوئے ہوتے ہیں، مضامین ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں، اور جو کچھ پہلی سورہ کے اندر ہائی لائٹ کیا گیا ہوتا ہے دوسری سورہ کے اندر اس کی تفصیل آ جاتی ہے۔ بعض اوقات پہلی سورہ کے اندر جو ہے نا تفصیل بیان کی ہوئی ہوتی ہے اور دوسری سورہ کے اندر اس کو سمرائز کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے جڑا جڑا ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک مضمون کے ایک پہلو کو بیان کیا گیا ہوتا ہے ایک سورہ کے اندر، اسی طریقے سے دوسری سورہ کے اندر اس کے دوسرے پہلو کو بیان کیا گیا ہوتا ہے۔ تو یہ جوڑا جوڑا کا تصور ہم ظاہر ہے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات سے بھی سمجھ لیتے ہیں، زمین و آسمان ایک جوڑا ہے، اور مرد اور عورت ایک گھر کو چلاتے ہیں، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوری کائنات کے اندر جوڑے جوڑے بکھیرے ہیں، اور وہی ترتیب قرآن مجید کے اندر بھی اسی طریقے سے رکھی ہے کہ صورتوں کو بھی توام بنا دیا ہے، جوڑا جوڑا بنا دیا ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے توام ہیں۔ توام کا مطلب یہ ہے کہ ٹوین ہیں، جوڑا جوڑا ہیں۔ اور پہلی سورہ میں جس امت کے لیے سال معاشرت کی اساسات واضح کی گئی ہیں، دوسری سورہ میں اسی پر اتمام نعمت اور اس کے ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے۔ یعنی سورہ النساء ہم پڑھ چکے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس کے مضامین کیا ہیں، وہ سال معاشرت کی اساسات ہیں، یعنی فاؤنڈیشنز ہیں کہ ایک نیک معاشرہ، ایک صالح معاشرہ، ایک اچھا معاشرہ کیسے وجود پذیر ہوتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ کمزوروں کے حقوق تھے وہ یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ، یتیموں کے اور عورتوں کے حقوق بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ پھر اس کے بعد گھر کیسے بنتا ہے، گھر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کن لوگوں سے نکاح کیا جا سکتا ہے، اور وراثت کے حوالے سے یعنی وہ چیزیں تھیں جو یہ یعنی ایک معاشرے کے اندر اگر ہم معاشرے کی فاؤنڈیشن اٹھانا چاہتے ہیں، صالح بنیادوں پہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو وہ صالح معاشرت کی اساسات واضح کی گئی تھیں اس پوری سورہ کے اندر۔ ہم جب پڑھ آئے ہیں سارے کے سارا مضامین تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سورہ کے اندر کیا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری سورہ کے اندر جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ ابھی جو چیز صالح معاشرت کی اساسات تھیں اسی سے متعلق اتمام نعمت ہے۔ اتمام نعمت یعنی اس نعمت کو مکمل کر دینا ہے، صالح معاشرت کی جو چیزیں ہیں، جو شریعت کے پہلو ہیں، ان کا اتمام کر دینا ہے، ان کو مکمل کر دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری عہد و پیمان کا بیان ہے۔ آخری عہد و پیمان یہ کیا ہے؟ یعنی یہ کہ
अगर हम मज़हबी ज़बान में इसको देखें तो जो पुरानी ओल्ड टेस्टामेंट का जो लफ़्ज़ बोला जाता है तौरात के लिए, उसके लिए न्यू टेस्टामेंट इंजील के लिए बोला जाता है, तो ये एक तरह का लास्ट टेस्टामेंट है, आखिरी अहद-ओ-पैमान है। टेस्टामेंट का मतलब ही यही होता है अहद-ओ-पैमान, और कुरान मजीद ने इसके लिए जो लफ़्ज़ बोला है, अक़ूद का लफ़्ज़ बोला है। इस सूरा की जो पहली आया होगी, वो इसी से इसका आगाज़ होता है। तो आखिरी अहद-ओ-पैमान है, यानी अल्लाह ताला की ज़ात ने जो अपनी नेमत मुकम्मल की है और उसके साथ-साथ इंसानों से जो अहद-ओ-पैमान लिया है, इस पे अमल पैरा होने का, वो आखिरी अहद-ओ-पैमान है। इनमें खिताब अगरचे अहले किताब से भी हुआ है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी। यानी ये कि इस सूरा के अंदर अगर आप देखें, पढ़ेंगे तो ज़ाहिर है कि इन सूरतों के अंदर, दोनों के अंदर अ, एक सूरा का कुछ हिस्सा जो है ना वो वहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी खिताब किया गया है और अहले ईमान से खिताब किया गया है और इसके साथ-साथ अहले किताब से भी खिताब किया गया है। कमोबेश आधी सूरा जो है ना वो अगर आप देखें पिछली इसी अन-निसा के अंदर भी यही सूरत-ए-हाल रही है और इसी तरीके से सूरा माइदा के अंदर भी जब जाएँगे तो देखेंगे कि शुरू के मज़ामीन आपको शरीयत पे मबनी होंगे और उसके बाद अहले किताब का जो है ना ज़िक्र शुरू हो जाएगा। तो इस तरह ये सूरा दोनों सूरतें जो है ना वो इस तरीके से बटी हुई हैं। इनके मज़ामीन से वाज़िह होता है कि बकरा व आल इमरान की तरह ये भी हिजरत के बाद मदीना में उस वक़्त नाज़िल हुई हैं जब मुसलमानों की एक बाकायदा रियासत वहाँ कायम हो चुकी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले किताब पर इत्माम हुज्जत और मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर कर रहे थे। यानी ये शरीयत का बयान होता है, ये बुनियादी तौर पे तज़किया और तत्हीर होता है, रसूल मौजूद होते हैं और वो चीज़ें जो साले माशरत की बुनियादें होती हैं, उसकी बुनियादें उठाई जा रही होती हैं और इस तरीके से जो है ना मुसलमानों का तज़किया और तत्हीर होता है। पहली सूरा अन-निसा का मौज़ू उम्मत मुस्लिमा की साले माशरत की असासात और उसका तज़किया और तत्हीर है। अगर एक जुमले में अगर आप पूरी सूरा को जो है ना समराइज़ करना चाहें, तो असल में उसका मौज़ू क्या था? उम्मत मुस्लिमा के लिए साले माशरत की असासात और उसका तज़किया और तत्हीर है। दूसरी सूरा जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, अल-माइदा का मौज़ू इस उम्मत पर इत्माम नेमत और उसके साथ अल्लाह परवरदिगार आलम के आखिरी अहद-ओ-पैमान का बयान है। ये है इंट्रोडक्शन इन दोनों सूरतों का और ख़ास तौर पे ज़ाहिर है कि सूरा माइदा का जो जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, उसके साथ मिला के हमने इसको देखा। इसका आगाज़ होता है सूरा माइदा का या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, यानी मुसलमानों को खिताब किया गया है। ये सबसे पहला जो यहाँ पे जब हम कोई भी कुरान मजीद का पैराग्राफ पढ़ते हैं, कोई भी आयत पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो चीज़ मुतय्यन करने वाली होती है, वो देखा ये जाता है कि ये किन को मुख़ातब कर रही है। यानी जब मुख़ातबीन तय हो जाते हैं, तो फिर उस सूरा का मुद्दा, उस सूरा जो वो कहना चाहती है, वो वो उसके मुख़ातबीन मुतय्यन हो जाते हैं। यानी ये कि डेफ़िनिटली हमें भी ख़िताब किया गया है, जो बाद की नस्लें आई हैं, जिस तरह आज हम 1400 साल बैठे हैं, लेकिन जब कुरान मजीद को समझने बैठेंगे, तो हम ज़ोर देते हैं कि सबसे पहले ये मुतय्यन किया जाए कि इसके प्राइमरी एड्रेसेस कौन-से हैं। प्राइमरी प्राइमरी ये कि जिनको सबसे पहले एड्रेस यानी किया गया है, जिनको ख़िताब किया गया है, वो कौन-से हैं। और यहाँ पे हमें मालूम होता है कि वो हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और यहाँ पे ज़ाहिर है कि अंडरस्टूड है, ये अहले ईमान हैं, जिनको यहाँ पे खिताब किया गया है। उसके बाद है औफ़ू बिल उक़ूद, ये कि अक़ूद को पूरा करो। अक़ूद क्या है? ये अहद-ओ-पैमान, जो अहद-मुआहदे होते हैं, उनके लिए ये लफ़्ज़ बोला गया है। औफ़ू ये वफ़ा करना, पूरा करना, ये उर्दू ज़ुबान में भी हम जो है ना ये लफ़्ज़ बोलते हैं। अक़ूद जो है, ये अक़द की जो है ना जमा है। जब ये अक़द लफ़्ज़ बोला जाता है, तो कुरान मजीद के अंदर और अल्फ़ाज़ भी आए हैं, जिस तरह अहद आया है इसी तरीके से मिसाक का लफ़्ज़ आया है। तो ये वादा, अहद, मिसाक ये सारे अल्फ़ाज़ बोले जाते हैं। अक़ूद का लफ़्ज़ जब बोला जाता है तो ये बुनियादी तौर पे अहद और मिसाक दोनों को अपने अंदर शामिल कर लेता है। यानी अक़ूद के अंदर ये इसमें अंदर एक वुसअत पाई जाती है अपने मायने के लिहाज़ से और ये अक़द का लफ़्ज़ी माना अगर देखें, डिक्शनरी में देखें तो ये गिरा होती है। यानी निकाह का अक़द जो है ना जब हम बोलते हैं लफ़्ज़ तो हमें मालूम है कि इसका मतलब वो यानी एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक एग्रीमेंट है जो हो गया है और अक़द से मुराद ये कि वो गिरे हैं जो हम अहद-ओ-पैमान की सूरत में अपने ऊपर बाँध लेते हैं, अपने ऊपर लाज़मी उसको यानी इख्तियार कर लेते हैं। यानी जब ही ये लफ़्ज़ अक़द कल बोला जाता है तो इसका एक यानी उर्फ़ी जो मफ़हूम है, जो आम मैंने कहा कि इसके अंदर मिसाक भी पाया जाता है, इसके अंदर अहद भी पाया जाता है, इसके अंदर और भी वादे जो आप किए करते हैं, वो भी पाए जाते हैं। ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है। आपके कौलो
इकरार जो आप करते हैं कि मैं ये काम करूँगा, ये आप ख़ास ज़बानी तौर पे कहते हैं या आप लिख के कहते हैं, वो चीज़ें इसके अंदर शामिल हो जाती हैं। इसके अंदर जो यूँ ही आप दुनिया में आते हैं, पैदा होते हैं और जिनके यहाँ पैदा होते हैं वालिदैन आपके होते हैं। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, तो ये एक अनरिटन जो है ना एग्रीमेंट खुद खुद वजूद आ जाता है कि आप ज्यों-ज्यों बड़े होते हैं, आपकी ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आती जाती हैं और त्यों-त्यों ज़ाहिर है कि आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ को उठाते जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं होता कि एक अहद, मुआहदा, कौलो-करार जो है वो बोलकर और समझाकर बयान किया जाए, वो खुद-खुद जो है ना वो वजूद में आ जाता है। यानी ये कि हमें वालिदैन का एहसान के साथ उनके साथ मामला करना है। ऐसे ही जब हमने अब एक आका, एक मालिक, एक खालिक को मान लिया, अल्लाह ताला की ज़ात को अपने लिए खालिक मान लिया, तो उसके बाद कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर खुद-खुद जो है ना वो आ जाती हैं। जिस माशरे में पैदा होते हैं, इर्द-गिर्द के माहौल में अगर हम देखते हैं, गली-मोहल्ले में रहते हैं, तो आपके ऊपर वहाँ गली-मोहल्ले के हवाले से भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर आयद हो जाती हैं। ऐसे ही माशरा जिस माशरे का आप हिस्सा होते हैं, वहाँ पे एक कानून होता है, एक रियासत होती है, एक हुकूमत होती है और वहाँ पे जो कवानीन रियासत के होते हैं, आप उसकी पैरवी करते हैं और वो अंडरस्टूड होता है। वो ज़रूरी नहीं होता कि आपसे हलफ़ लिया जाए और उसके बाद आपसे तकाज़ा किया जाए कि अब इन अहद मुआहदों की पाबंदी करें। यानी ये इस अक़ूद के अंदर वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, जो आपको शऊर मिलने के बाद आपकी ज़िम्मेदारियाँ खुद-ब-खुद जो है ना कायम हो जाती हैं। ख़्वाह वो आपका ज़मीर आपके ऊपर कायम करता है, ख़्वाह जो है ना वो माशरा आपके ऊपर कायम करता है, ख़्वाह आपका घराना आपके ऊपर कायम करता है, ख़्वाह आपकी हुकूमत आपके ऊपर कायम करती है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि हम जो पढ़ रहे हैं, कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अगर हम इसको मुतय्यन करना है कि इस अक़ूद जो लफ़्ज़ बोला गया है, इसकी डायरेक्शन क्या है? ये किस मकसद के लिए बोला गया है? इसको अब हम आम नहीं रहने देंगे। ये जो अभी जितनी भी मैंने मिसालें आपके सामने पेश की थी, ये इसका आम मफ़हूम था। यानी हर वो चीज़ ज़ाहिर है कि जो आपके इर्द-गिर्द के माहौल में आपसे मुतल्लिक़ होती है, आपके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आयद कर देती है, अक़ूद उसके अंदर शामिल होता है। लेकिन ज़ाहिर है कि हम सूरा पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पे पूरी सूरा के मज़ामीन को सामने रखेंगे। और ना सिर्फ़ सूरा के मज़ामीन को सामने रखेंगे, बल्कि हमारा जो नुक्ता नज़र है तफ़सीर के हवाले से वो ये है कि इस ग्रुप के अंदर जो शुरू से लेके आखिर तक जो कुछ पड़ा है, वो एक तसलसल में कुरान मजीद बात कर रहा होता है। ऐसा नहीं होता कि वो ख़ास उस जगह पे कोई ऐसी बात आ गई है और उसको बयान करना, ये भी होता है, ज़ाहिर है कि उससे मुतल्लिक़ा कोई चीज़ होती है, उसको भी बयान देना होता है। लेकिन हम जब बात को समझ रहे होते हैं, तो वो पिछली पूरी बात के तसलसल में जो है ना, उस चीज़ को समझ रहे होते हैं। तो ये अक़ूद का जो लफ़्ज़ है, ये अब हमारे सामने वाज़ेह हो गया कि ये बुनियादी तौर पे पूरी सूरा को सामने रखेंगे और जो कुछ पीछे जो है ना, वो हम पढ़ते आए हैं, उसको भी सामने रखेंगे। तो जब हम सामने रखेंगे तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह तआला की दी हुई शरीयत है और ये शरीयत जो आपको दी जा रही है, ये एक अहद-ओ-पैमान में बाँध कर तुम्हें दी जा रही है। तुम जब ईमान ले आए हो और ईमान लाने के बाद ईमान का मतलब ही यही है कि ईमान लाने के बाद आपने यकीन पे खड़े होना है, एतराफ़ पे खड़े होना है और ये कि जो कुछ तुम्हें उस अल्लाह तआला की तरफ से दिया जाएगा, वो अहद-ओ-पैमान है। यूँ ही आप कलमा शहादत पढ़ते हैं, जब आप इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, तो आपके ऊपर ये अहद मुआहदे, ये पाबंदियाँ लाज़मी तौर पे आपके ऊपर आ जाती हैं। ये इनफ़रादी तौर पे जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसका बयान है। और उसके बाद ज़ाहिर है कि कलेक्टिवली अगर हम देखें तो जो मुआशरा जिसमें ज़ाहिर है कि आप साथ शामिल हो जाते हैं, उस मुसलमानों के माशरे पे, तो मुसलमान माशरा जब हम वजूद में आ जाता है, तो वहाँ पे भी ये ज़िम्मेदारियाँ उन पे आयद हो जाती हैं। इनफ़रादी हैसियत से और इज्तमाही हैसियत से। और उसके बाद ज़ाहिर है कि आपके मुख्तलिफ़ रोल्स भी हो सकते हैं। आप इनफ़रादी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं, आप वालिदैन हैं, आप जो है ना वो माशरे के अंदर कोई और ज़िम्मेदारियाँ हैं, तो ज़िम्मेदारियों के हवाले से भी ज़ाहिर है कि जहाँ-जहाँ ये जो है ना अहद-मुआहदे आपके साथ जुड़ेंगे, आपने उन ज़िम्मेदारियों को उठाना है। ये आपकी इनफ़रादी हैसियत है और उसके बाद इज्तमाही हैसियत है। इज्तमाही हैसियत में भी ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ़ रोल्स हैं, ये कि हुकूमतें होती हैं, माशरे होते हैं, इलाके होते हैं और उसके बाद बहैसियत उम्मत, जिसको हम उम्मत की बात करते हैं, तो इसमें बनी इसराइल का एक दौर था और उसके बाद बनी इस्माइल का एक दौर है। बनी इसराइल को भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ दी गई थीं। यानी ये चीज़ भी क्योंकि ज़ाहिर है कि तसलसल में पढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ उसी तसलसल में हम जब जहाँ पहुँचे हैं, तो ये कि ये ज़िम्मेदारियाँ जो आप इस्लाम कबूल करने करने के बाद अपने ऊपर उठा लेते हैं, ये उसके अंदर शामिल हैं और उसके साथ-साथ बनी इस्माइल की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, बनी इस्माइल यानी ये कि अब उम्मत के तौर पे उसको उठा दिया गया है। अब इसने पूरी दुनिया में गवाही देनी है, शहादत हक़ का जो है ना फ़रीज़ा सरअंजाम देना है और वो शहादत हक़ का फ़रीज़ा जो है, वो भी एक अक़द की सूरत में है और उसको दुनिया के सामने एक अमली
नमूना बना के जो है ना पेश करना है, अपने अंदर ये कि इस शरीयत को उतारना है और दावत लेके जाना है और ये बताना है कि देखो ये हमारे पास दावत है, हम इसका अमली नमूना है, हमारे पास कुत किताब है, अल्लाह की दी हुई शरीयत है और उसकी की दी हुई जो है ना हमारे पास सुन्नत है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये मज़हब है, ये दीन है, इसके नतीजे में तुम्हें जो है ना कल को आखिरत में कामयाबी और सुरख़्ई मिलनी है, अगर इस पे अमल पैरा हो जाते हो। तो ये वो पहलू हैं कि इनफ़रादी हैसियत से हों या इज्तिमाई हैसियत से, इस अक़ूद के अंदर वो तमाम के तमाम पहलू आ जाते हैं। अब ये जो आया का इतना सा हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद, इसके बाद फ़ौरी शरीयत का बयान आ जाता है। यानी पहली ये सूरतें हैं और अमूमी तौर पे हम कहते आए हैं कि देखें हर सूरह का एक इब्तिदाइया होता है, उसके बाद मज़ामीन शुरू होते हैं और उसके बाद एक इख्तितामिया होता है। और हम हर जगह जो है ना इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि कहाँ पे इब्तिदाइया जो है ना आगाज़ का होता है उसका, और कहाँ पे मज़ामीन स्टार्ट हो जाते हैं और कहाँ पे सूरह जो है ना उसका ख़ात्मा होता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सूरह माइदा के अंदर, क्योंकि ये आखिरी सूरह है, तो ये भी एक असलूब है कि कुरान मजीद जो है वो बगैर किसी जो है ना पूरा पैराग्राफ दिए यानी शरीयत का बयान जिस तरह यहाँ पे फौरी तौर पे शुरू हो जाएगा, तो यहाँ पे गोया कि ये महसूस होता है कि ख़ास इब्तिदाइया देना मकसूद ही नहीं है। जो पिछली सूरतों के अंदर इब्तिदाइया थे, ज़ाहिर है कि इसके तमाम जो पिछली सूरह आई थी, उसी को मिला के जो है ना यहाँ पे बात से बात कही गई है। अगर आप पिछली जो सूरह थी, सूरह जो अन्निसा थी, उसका आगाज़ भी अगर देखें तो वहाँ पे अहले ईमान को ही खिताब इसी तरीके से किया गया था, और गोया कि वहाँ पे अगर आप जब इसको देखते हैं सूरह निसा के शुरू में, तो वहाँ पे या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, और आगे जब हम बढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये अहले ईमान को जो है ना वो खिताब किया गया है। ऐसे ही यहाँ पे ज़ाहिर है कि सूरह माइदा के अंदर जब ये बात कही गई है, तो ये अहले ईमान को खिताब करके, यानी ये कि यहाँ को ख़ास इब्तिदाइया देना मकसूद नहीं है, और इसी असलूब में ये कि फ़ौरी तौर पे शरीयत देना मकसूद है, उसको हाइलाइट कर दिया गया है। यूँ ही इस तरीके से हाइलाइट किया जाता है, तो गोया उसकी अहमियत को जताना होता है। अगर आपने समझना ही है कि पूरी की पूरी सूरह जो है, उसका कोई इब्तिदाइया आपने मुतय्यन करना है, तो वो बस इतना ही हिस्सा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद, यानी अब पूरी की पूरी सूरह जो है वो इसी सेंटेंस के अंदर, इसी जो है ना फ्रेज़ के अंदर जितने भी ये अल्फ़ाज़ आपके सामने पढ़े गए हैं, इसी के तहत अब हम देखेंगे। ये गोया कि अब जो आपके साथ मामला होगा इस सूरह के अंदर, वो मामला है यानी इत्माम नेमत का, और इत्माम नेमत के साथ-साथ जो है ना आपको एक अक़्द में बाँधा जा रहा है, आपको अहद-मुआहदे में बाँधा जा रहा है। किसी स्टेज पे ये ओल्ड टेस्टामेंट थी, किसी स्टेज पे ये न्यू टेस्टामेंट थी, और अब इस स्टेज पे ये लास्ट टेस्टामेंट है। उस सूरत में तुम्हें ये कुरान मजीद की सूरत में एक एग्रीमेंट की सूरत में जो आपके सामने रख दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट है जिसको आपने फुलफ़िल करना है, और ये वो चीज़ है जिसको इस्लाम कबूल कर देने के बाद आपने इस पे अमल पैरा हो जाना है। ये यानी वो जो दस्तावेज़ वजूद में आ जाती है, एक अक़द वजूद में आ जाता है, ये वो पहलू है। और यूँ ही ये बात ख़त्म हुई, उसके बाद कहा गया कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम ग़ैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। ये इस आया का यानी शरीयत का जो हिस्सा है, इसमें जो कंपोनेंट है, उसको मैंने आपके सामने पढ़ के सुनाया है। ये कहा गया है कि हलाल कर दिया गया है। उहिल्लत, ये पैसिव वर्ब बन के आया है कि हलाल कर दिया गया है तुम्हारे लिए। अ, बहीमा ये जानवर को कहा जाता है। ये जानवर जो है, ये हमारे मवेशी भी हो सकते हैं और जंगली जानवर भी हो सकते हैं, उसके लिए बहीमा का लफ़्ज़ बोला जाता है। अनआम जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके पास जो जो आपके पालतू जानवर होते हैं, जिनको हम मवेशी कहते हैं, उनको अनआम कहा जाता है। इसको सूरह अनआम में जो है ना आगे जाके इसको कैटेगराइज़ भी कर दिया है कुरान मजीद के कि इसके अंदर कौन-कौन सी चीज़ें हैं। ये कौन-कौन सी चीज़ें हैं? ये बड़ी मालूम और मारूफ़ चीज़ें हैं, जैसे बकरियाँ हैं, भेड़ें हैं, गाय है, ऊँट है और भैंस है। ये इस तरह के जो जानवर होते हैं, जो पालतू जानवर होते हैं, जिनको आप पालते हैं घरों में, और उनसे ज़ाहिर है कि फ़ायदा हासिल करते हैं, गोश्त हासिल करते हैं, उनसे जो है ना दूध हासिल करते हैं। ये इनको अनआम कहा जाता है। ये पालतू जानवर होते हैं, मवेशी जानवर होते हैं, और इनसे ज़ाहिर है कि हम गोश्त हासिल करते हैं। और जब अनआम का लफ़्ज़ बोला,
तो ये मैंने कहा कि जैसा कि सूरह अनाम में भी जाके इसको कैटेगराइज़ कर दिया है। अनाम बड़ा वाज़ेह लफ़्ज़ है, ये कि वो जानवर जो मवेशी जानवर हैं, ये तुम्हारे लिए हलाल कर दिए गए हैं। लेकिन कुरान मजीद जो है ना सिर्फ़ मवेशियों की हद तक ही जो है ना इसको महदूद नहीं रखना चाहता। इसके साथ एक और चीज़ जिसको बहीमतुल अनआम का लफ़्ज़ आ गया है, पॉसेसिव केस आ गया है कि वो अनआम जो यानी वो बहीमा यानी बहीम से मैंने कहा जानवर जो अनआम की किस्म के हैं। यानी जानवर जो अनआम की किस्म के हैं। अब इसके अंदर मवेशी जानवर भी शामिल हो जाएँगे, जो आपके पालतू जानवर हैं और वो जंगली जानवर भी शामिल हो जाएँगे, जो अनआम की तरह ही के मिलते-जुलते जानवर हैं। जैसे हिरण है या और जो है ना इस तरह नीलगाय है या और अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ मिलती है जो जिसको हम कैटेगराइज़ कर सकते हैं, अनआम के जानवरों के साथ मिला सकते हैं, उनके लिए ये लफ़्ज़ आया है। ये बहीमा का जो लफ़्ज़ आया है, ये इसका माना मैंने बताया कि जानवर होता है। उर्दू में भी ये लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है बहीमियत के लिए, ये कि जानवर का जानवर होना या इंसानों के लिए बाज़-औक़ात अगर वो इंसानियत से गिर जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बहीमियत इसने इख्तियार कर ली है। यानी जानवर का जानवर होना, ये वो लफ़्ज़ है। तो गोया कि अनआम से जो पालतू जानवर हैं, जो मवेशी हैं वो जानवर जिनको हम अपने घरों में रखते हैं ज़ाहिर है कि अब ये सकाफ़त, ये तहज़ीब जो है ना मिटती जा रही है। एक ज़माना रहा है कि लोगों के यहाँ जो है ना एक कारोबार था, एक ज़िंदगी का हिस्सा था, जानवरों के साथ उठना-बैठना, ये कि अपने घरों में उनको पाला जाता था, उनकी जो है ना वो रखा जाता था और ये कि अनाम जैसा कि मैंने कहा कि ये उस कैटेगरी की चीज़ है और जानवर, बाकी जानवर भी बहीम का जब बहीमा का लफ़्ज़ बोला तो इसके अंदर अनआम भी शामिल है और इसके अंदर ज़ाहिर है कि वो जो जंगली जानवर होते हैं वो भी शामिल है, लेकिन वो कैटेगरी कौन-सी होगी वो हम अनआम की कैटेगरी में ही जो है ना उनको भी देखेंगे। इल्ला मा युतला अलैकुम सिवाय इसके कि जो आगे आपको पढ़कर बयान किए जाएँगे वही हराम होंगे। यानी ये कि कुरान मजीद आगे चल के कुछ चीज़ें मज़ीद वाज़ेह करेगा। ये जो आया का टुकड़ा है इल्ला मा युतला अलैकुम इसके फौरी बाद जो है ना वो उसको पढ़ना शुरू कर देगा, बयान करना शुरू कर देगा कि सिवाय इसके कि जो चीज़ें आगे चल के आपको बताई जाएँगी वो हराम हैं। बाकी सारी की सारी चीज़ें जो अनआम के किस्म के जानवर हैं, अनआम खुद भी और इसकी किस्म के जो जानवर हैं, वो आपके ऊपर वाज़ेह कर दिए गए हैं, आपके लिए हलाल ठहरा दिए गए हैं। ये जो पैसिव का लफ़्ज़ यहाँ पे आ गया, उहिल्लत इसमें थोड़ी-सी वज़ाहत कर देना चाहता हूँ। ये हलाल कर दिए गए हैं। ये जब इस तरीके से पैसिव आता है, एक वर्ब आता है, तो हमें मालूम है कि पीछे हम पढ़ते आए हैं कि एक वर्ब जब इस्तेमाल होता है, तो बाज़ औक़ात तो वो अपने इब्तिदाई मफ़हूम में इस्तेमाल हो जाता है। इन्ना अनज़लना हाज़ जब हम जब कुरान मजीद के बारे में कहा कि इस तरह की आयत आती हैं कि हमने उतारा तो कुरान मजीद को उतारा, तो उसके अंदर ये मफ़हूम जो है ना वो शामिल होता है कि ये आगाज़ हुआ है इसका कुरान मजीद के उतरने का। और आगाज़ यानी अनज़लना के अंदर यानी ये चीज़ पाई जाती है कि अभी इसका आगाज़ हुआ और आगे चल के ज़ाहिर है कि ये मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे ही कुछ अल्फ़ाज़ होते हैं जिनके बारे में हम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात ने फ़ैसला कर लिया है किसी चीज़ के बारे में, तो वो फ़ेल के अंदर एक चीज़ मौजूद होती है कि वो फ़ेल खुद बयान कर रहा होता है कि ये फ़ैसला क्या बयान है। यानी बाज़ औक़ात फ़ेल जो है अपने इब्तिदाई मफ़हूम में इस्तेमाल हो जाता है और बाज़ औक़ात अपने मुकम्मल मफ़हूम में इस्तेमाल हो जाता है। इब्तिदाई मफ़हूम में, मुकम्मल मफ़हूम में, इरादे के मफ़हूम में, फ़ैसले के मफ़हूम में और बाज़ औक़ात वो लफ़्ज़ जो है अपनी तफ़सील के मफ़हूम में भी इस्तेमाल हो जाता है कि जब ये कहा गया उहिल्लत इस तरीके से पैसिव यानी वर्ब पैसिव वॉइस की सूरत में कहा गया, तो इसके अंदर ये चीज़ खुद जो है ना बिल्ट इन बन गई कि अब वो तमाम चीज़ें जो जायज़ थीं, हलाल थीं, आपके ऊपर वाज़ेह कर दी गई हैं। अब वो उनका वाज़ेह होना आपके ऊपर जो है ना वो वाज़ेह कर दिया गया है। ये वो लफ़्ज़ है उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम यानी अब इसके अंदर किसी तरह की जो है ना वो ओहाम नहीं पाए जाने चाहिए। अगर नीचे अगर आप इसका जो हाशिया है वहाँ इसको देखें, तो वहाँ पे 266 में लिखा है कि यानी उनका हलाल होना वाज़ेह कर दिया गया है और वो तमाम पाबंदियाँ जो लोगों ने अपने औहाम की बिना पर पिछले सहीफ़ों की किसी रिवायत की बिना पर अपने ऊपर आयद कर रखी थी, ख़त्म हो गई। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिनको यानी नीचे हाशिए में कि अपने औहाम की बुनियाद पर या पिछले सहीफ़ों की बुनियाद पे। यानी औहाम से मुराद क्या है? औहाम ये होते हैं कि आपके सामने एक सिनेरियो आ गया, आपने जो है ना वो वहाँ पे देखा कि मैं इसको हराम समझूँ या
या इसको हलाल समझूँ। और बाद औक़ात उसकी कोई बुनियाद नहीं होती, आपने फ़ैसला कर लिया कि ये हराम है। यानी फ़िक़ही बाद औक़ात ये सूरत-ए-हाल बन जाती हैं कि इंसान ज़ाहिर है कि अपनी दलील तो देता है, लेकिन बाद औक़ात वो दलीलें जो है ना कोई ख़ास मुतय्यन दलीलें नहीं होती, वो किसी ख़ास शरई नस की बुनियाद पे नहीं होती, वो महज़ वहम की बुनियाद पे होती हैं। तो वो अगर वो पिछली किताबों के अंदर या पिछली उम्मतों के अंदर जिस तरह बनी इसराइल अहले किताब हैं, उनका ज़िक्र भी साथ-साथ लेके चलना है, क्योंकि इन आयात 2-4 आयात के बाद उनका ज़िक्र आ जाएगा, तो ज़ाहिर है कि जो चीज़ बाद में आएगी हम उसको साथ-साथ पैरेलल लेके चल रहे होते हैं। तो पिछली किताबों में, पिछली उम्मतों के अंदर जो उहाम थे, उहाम की बुनियाद पे हलाल और हराम के जो फ़ैसले किए गए थे, वो फ़ैसले भी जो है ना कल अदम कर दिए जाते हैं। ये बताना मकसूद है इस उहिल्लत के अंदर। और उसके बाद अगर पिछली सहीफ़ों के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि जिसमें यहूदियों के जो है ना अपने ये कि उन्होंने ज़िद और हठ धर्मी से काम लिया और अपने ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो है ना इम्पोज़ कर लीं और आगे चल के अल्लाह ताला की ज़ात में ज़ाहिर है कि उनको कबूल कर लिया। इसकी बड़ी वाज़ेह मिसाल जो हम बार-बार देते हैं, जिस तरह उन्होंने गाय को ज़िबह करने के लिए कहा गया, उन्होंने अपनी जो है ना वो हठ धर्मी और अपने इसरार की वजह से वो गाय का जो है ना वो सारा मामला वो एक-एक करके महदूद करते चले गए और आखिर में एक ख़ास किस्म की गाय रह गई जो उनको ज़िबह करनी थी। तो इस तरीके से ज़ाहिर है कि अगर एक कौम खुद तुल पड़ती है, कुछ चीज़ों पे इसरार करती है, तो अल्लाह ताला की ज़ात उसको चलने देते हैं। और जब चलने देते हैं तो ज़ाहिर है कि उनकी वो किताबों का हिस्सा बन जाती है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ थी, तो वो भी अल्लाह ताला की ज़ात ने उसका मौका और महल भी आपके सामने वाज़ेह कर दिया है। अब वो पिछले तमाम उहाम हों या उनके सहाइफ़ के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, उसको भी मुतय्यन करके जो है ना बता दिया गया है। ये इस उहिल्लत के अंदर ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, जब इस तरीके से लफ़्ज़ बोला जाता है। अच्छा, ये आपके सामने वाज़ेह कर दिया कि उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम। ये अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा है और उसके बाद सिवाय इसके कि वो हराम हैं, जो आगे पढ़ के आपको बताए जाएँगे। अबे अभी जो इसके बाद वाला जो आयत का टुकड़ा है, वो टुकड़ा है जिसको ज़ाहिर है कि अभी हम उसको पढ़ेंगे और उसमें ये चीज़ें मुतय्यन करेंगी कि वो किस पहलू से हराम हैं। अब आगे यूँ ही इस है जो आया का टुकड़ा है, वो है गैर मुहिल्लिस सैदी व अंतुम हुरुम। ये टुकड़ा आ जाता है। ये उसी इल्ला मा युतला अलैकुम के तहत जो है ना, हम इसको लेके आएँगे और कहा गया कि मुहिल्लिस सैदी, मुहिल जो लफ़्ज़ है, मुहिल्लिस सैदी, ये लफ़्ज़ अहल्ला से है। अल्लाह यानी हलाल करना और ये जब ये कहा गया मुहिल्लिस सईदी, तो ये असल में इसका माना ये होगा कि हलाल करने वाले। मुहिल ये फ़ाइल की सूरत में आता है, हलाल करने वाले जमा हो गया है, ये मुहिल्लीन का लफ़्ज़ था असल में और नून जो है ना वो गिर गया, ये ग्रामर का हिस्सा है। तो और ये कि वो हलाल करने वाले सईद, सईद कहते हैं जो शिकार को कहा जाता है। तो गैर ये उसको नफ़ी की सूरत में आ गया है कि आपने अब शिकार करने वाले नहीं बन जाना। शिकार करने वाले नहीं बन जाना और ये क्या कि हर हालत में नहीं बन जाना, आगे उसको मज़ीद जो है ना वो महदूद किया है व अंतुम हुरुम और इस हालत में कि तुम इहराम पहने हुए हो। यानी ये वो बात है कि जब तुमने इहराम पहन लिया और उसके बाद तुमने शिकार नहीं करना। ये वो पहलू है जो बताया गया कि तुम्हारे ऊपर ये जानवर हराम हो जाएगा। यानी वो जानवर जो असल में हलाल है और आम हालात में वो हलाल ही होगा। लेकिन यूँ ही आपने एहराम बाँध लिया और उसके बाद आपने शिकार नहीं करना, अगर किया तो इस सूरत में जो है ना वो आपके ऊपर हराम हो जाएगा। व अंतुम हुरुम, हुरुम जो है ना ये जमा है लफ़्ज़ हराम की। हराम का जो लफ़्ज़ है ये कई मानों में इस्तेमाल होता है। पाबंदी के मानों में भी होता है कि ये चीज़ हराम हो गई, अब यानी ये इस्तेमाल नहीं होगी। और हराम का लफ़्ज़ एहतराम के लिए भी इस्तेमाल होता है, जैसे हम बैतुल्लाह के लिए लफ़्ज़ जो है ना हराम का बोल लेते हैं। बैतुल हराम जो है ना हम कह लेते हैं, यानी उसके अंदर एक तक़दीस आ जाती है, एहतराम आ जाता है, उसके लिए लफ़्ज़ बोल लेते हैं। हराम का एक लफ़्ज़ उस शख़्स के लिए भी बोला जाता है जिसने इहराम बाँध लिया हो, यानी हज के लिए या उम्रे के लिए इहराम बाँध लिया है और उसके लिए भी हराम का लफ़्ज़ बोला जाता है और ये उसकी जमा है हुरम यानी हराम की जमा है। अब ये कि उस हालत में जिस हालत में कि तुमने इहराम बाँध लिया हो और इरादा कर लिया हो, नियत कर ली हो, किस चीज़ की हज या उम्रे की कर ली हो, तो उस सूरत में क्या करना है कि अगर शिकार किया है और शिकार किया हुआ जो जानवर है, वो आपके लिए जायज़ नहीं होगा। इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहती है, हुक्म देती है और इससे पहले ब्रैकेट में रखा है कि ये अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह का हुक्म है यानी ये कि अब ये शरीयत का हिस्सा है, इसकी पैरवी करनी है। ये अब अहद मुआहदे में चीज़ बन गई है कि अब आपने इसको इख्तियार कर लेना है।
अच्छा अगर हम देखें तो जो पीछे बात हुई है वो बात ये हुई है कि अनआम की किस्म के जो जानवर हैं वो सारे के सारे जायज़ हैं, हलाल हैं और वो आप उनको खा सकते हैं। लेकिन यूँ ही इसके बाद इल्ला मा युतला अलैकुम की हिस्सा आया और उसके बाद वो चीज़ें जो आप नहीं कर सकते उनको बयान किया गया है। यहाँ पे जो एक्सेप्शन आई है, वो एक्सेप्शन जो है एक ख़ास हालत की आई है, ये भी सामने रहे। वो ख़ास हालत क्या है, एक मौका और महल है, जिसके ज़ाहिर है कि जिसमें ये चीज़ मुतय्यन की जा रही है। वो मौका और महल क्या है कि आपने इहराम का जो है ना कपड़े पहन लिए और एक ख़ास हालत में आ गए हैं, तो अब उस हालत के साथ जो है ना ये शरीयत का पहलू मुतल्लक होता है। यानी ये भी चीज़ हम देखते हैं कि ये किस मकाम की चीज़ है, किस मरहले की चीज़ है, किस मौके की चीज़ है, उन चीज़ों को सामने रखते हुए करते हैं। तो ये यहाँ पे असल में ये जानवर हलाल हैं और आप इनको खा सकते हैं, आप इनका यानी गोश्त इनसे हासिल कर सकते हैं और जब गोश्त हासिल कर सकते हैं, तो क्या वजह है कि इनको हराम करार दे दिया गया है कि ये काम नहीं कर सकते? उसकी फिर अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद दलील दी है, इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहती है, हुक्म देती है। जो चाहती है, हुक्म देती है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि कोई भी जो हुक्म आता है कुरान मजीद के अंदर, तो वहाँ पे ये मसलहत बता दी जाती है कि ये किस मकसद के लिए तुम्हें हुक्म दिया जा रहा है। यानी पीछे हम बहुत सारे जो है ना शरीयत के अहकामात देखते आए हैं। साथ ही उसकी इल्लत बयान कर दी जाती है कि ये हुक्म जो है इसकी बुनियादें क्या हैं? ये कहाँ से उठा हुआ है? ये इल्लत होती है। तो ये हुक्म कहाँ से उठा हुआ है? ये कि अगर शराब मना की जाएगी, तो शराब की जो हुर्मत है, वो कहाँ से उठी हुई है? कि इसी वजह से कि इसके अंदर एक नशा पाया जाता है और उसके बाद ज़ाहिर है कि इंसान की अकल जो है ना, वो जवाब दे जाती है। ये उसका नतीजा होता है। तो यानी ये कि एक चीज़ की इल्लत क्या है और उस चीज़ का फ़ायदा क्या है? ये चीज़ें समझाई जाती हैं। शरीयत देने के साथ-साथ समझाई जाती हैं। यानी उसमें इंसानों की फ़ायदे को देखा जाता है, इंसानों की मसलहत को देखा जाता है, इंसानों के तज़किया का जो पहलू होता है, वो सामने रखा जाता है। जब ये शरीयत दी जाती है, तो ये तमाम चीज़ें बयान की जाती हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती हैं, वहाँ अल्लाह ताला की ज़ात ने इंसानों की मसलहत जो है, वो नहीं बताई और ना ही कोई इल्लत बताई है, ना कोई उसका मकसद बताया है। बस इतना कह दिया है कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अब हम इस आयत से ये समझते हैं कि असल में कुरान मजीद के अंदर या शरीयत के अंदर असल में 2 तरह के जो है ना अहकामात आते हैं, जिनकी इल्लत और जिनकी मसलहत, जिनका फ़ायदा, जिनका जो है ना वो मकसद हमें मुतय्यन करके बता दिया जाता है। ये एक तरह के अहकाम हो गए और दूसरी तरह के अहकाम जो है ना वो अहकाम होते हैं, जिनकी ना इल्लत बताई जाती है, ना मकसद बताया जाता है, ना उनका कोई फ़ायदा बताया जाता है। महज़ ये कहा जाता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हारे ऊपर ये लागू कर दिए हैं। तुम्हारे ऊपर जो है ना ये डाल दिए हैं, ज़िम्मेदारी के तौर पे डाल दिए हैं, अक़द के तौर पे डाल दिए हैं, इनको जो है ना इख्तियार कर लो। ये 2 तरह के जो अहकामात हैं, इनको सामने लाज़मी तौर पे रखना चाहिए। यहाँ अल्लाह और अल्लाह के रसूल कोई चीज़ बता दें और उसकी कोई इल्लत बता दें, उसकी कोई जो है ना मकसद बता दें, उसका कोई जो है ना सबब बता दें कि ये क्यों किया जा रहा है, इसका क्या सबब था, इसका क्या नतीजा होगा, इससे तुमसे क्या इससे हासिल होना यानी होगा, इसके एंड रिज़ल्ट क्या होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना हर जगह ये मुतय्यन करके बता दी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें पता चला कि अच्छा ये जो हुक्म दिया जा रहा है, इसकी ना कोई इल्लत बताई जा रही है, ना ही कोई इसकी मसलहत बताई जा रही है, को ना कोई इंसानी फ़ायदा इसके अंदर को बताया जा रहा है। महज़ ये कहा जा रहा है कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। अल्लाह ताला की ज़ात जो चाहती है वो हुक्म देती है। ये जो इस तरह के अहकामात आते हैं, इसको हम कहते हैं कि इब्तिला के अहकामात हैं, आज़माइश के इम्तिहानात हैं। इनमें महज़ अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इंसानों से एक इब्तिला से गुज़ारना चाहती है, एक आज़माइश से गुज़ारना चाहती है। वो इब्तिला और आज़माइश क्या है कि क्या इंसान मेरे सामने झुकता है कि नहीं झुकता? यानी ये कि मैं हाकिम मुतलक हूँ। मुझ पे कोई शर्त आयद नहीं होती। मैं इंसानों पे, अपने गुलामों पे, अपने बंदों पे कुछ अहकामात जो है ना वो मैं लाज़मी उनके ऊपर कर देता हूँ और मैं ज़रूरी नहीं कि मैं उसका आप लोगों को फ़ायदा बताऊँ। तो जो इस तरह के अहकामात होते हैं, उनके आगे हम बस सरेंडर करते हैं। ये बात है जो यहाँ पे कही गई है। हम उसके सामने झुक जाते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह हाकिम मुतलक है। वो जो जी चाहे हमें जो है ना कहे,
वो जो कहेगा हम उसके सामने सरेंडर करेंगे। अगर वो हमें कोई उसका मुसलहत बता देता है, उसकी कोई इल्लत बता देता है, उसका कोई मकसद बता देता है, उसका कोई फ़ायदा बता देता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं बताया और उसके साथ महज़ ये कह दिया कि ये मैंने आपको हुक्म इसलिए दिया है कि मेरा इख्तियार है। उसने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया है और हमें नहीं बताया कि इसके नताइज क्या हैं, इसके जो है ना इल्लत क्या है, फ़ायदा क्या है, हमें उसको समझने की फिर ज़रूरत नहीं है। इसको और जगह आपने समझना है, तो मैं इसकी बड़ी सादा-सी आपको मिसाल देता हूँ। ये रोज़े के हवाले से है। पीछे हम पढ़ रहे हैं, रोज़ा जो है, रोज़ा आप जानते हैं कि बिल्कुल वो एग्ज़ाम्पल इसके साथ जो है ना फिट आती है। वो आम हालात में खाना-पीना जायज़ होता है। आम हालात में मियाँ-बीवी का ताल्लुक जायज़ होता है। लेकिन यूँ ही आपने रोज़ा रख लिया, सहरी कर ली और उसके बाद पूरा दिन आपने इन चीज़ों से अपने आप को इज्तनाब करना है। यानी जो चीज़ें जायज़ थीं, हलाल थीं, वो आपके ऊपर अब जो है ना वो नाजायज़ हो गईं। आपने उनको इस्तेमाल नहीं करना और उसके बाद ज़ाहिर है कि शाम जब यूँ ही रोज़ा खोला, तो वो चीज़ जो है, जो पूरे दिन की आपके ऊपर लागू की गई थी, वो ज़ाहिर है कि अब वो उठ गई। इस तरीके से पूरा महीना रमज़ान का गुज़र जाता है और वो पूरे महीने की जो है ना, एक तरह की हम जो है ना, पूरी एक्सरसाइज़ करते हैं, उससे गुज़रते हैं, उससे निकलते हैं और उसके बाद ज़ाहिर है कि ईद करते हैं और उसके बाद वो हमें जो पाबंदियाँ थी, उस पाबंदियों से बाहर निकल आते हैं। यहाँ पे भी इसी नौइयत का ये हुक्म है। वहाँ पे भी वो जो मैंने बताया कि ख़ास पाबंदियाँ हैं, जो अपने ऊपर लागू कर लेते हैं, हमें नहीं बताया गया उसके लिए कि इसका क्या फ़ायदा होगा। यानी ये तो पता है कि ज़ाहिर है तज़किया होगा उसके नतीजे में, इसके नतीजे में भी तज़किया ही होगा। तज़किया ये कि हम अल्लाह के सामने सरेंडर करते हैं, लेकिन क्या कोई इंसानों की मसलहत बताई गई, इंसानों का कोई फ़ायदा बताया गया, इंसानों का कोई तज़किया का पहलू बताया गया, वो ज़ाहिर है कि ना उसके लिए है और ना इसके लिए है। तो जब इस तरह के अहकामात आते हैं, तो ये हम उसके सामने महज़ सरेंडर करते हैं, ये समझते हुए कि वो हाकिम मुतलक है, वो साहिब इख्तियार है, वो जो चाहे जो है ना हमें दे, हमें उसके सामने झुकना है। ये एक तरह के अहकामात हो गए कैटेगराइज़ करते हुए और दूसरी तरह के अहकामात वो हैं जिनकी इल्लत पता चल के, जिनकी मसलहत पता चले। ये रेपिटिशन में इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जो है ना वो चीज़ें आपको सामने मुतय्यन तौर पे वो जो है ना आपके सामने आ जाएँ। ये वो बात है जो इस पैराग्राफ के अंदर बयान हुई है। इसके बाद अगली पैराग्राफ की तरफ मुड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई सवाल हो तो उसको जो है ना ले लेते हैं। अच्छा, एक और पहलू है, वो ये कि जब भी हम नई सूरा का आगाज़ करते हैं, तो जो पीछे मज़ामीन तसलसल में आ रहे होते हैं, उसको भी साथ-साथ उसको मिला के देख रहे होते हैं। ये पिछली सूरा के अंदर जो है ना, अगर आप देखें, तो जो आखिरी पैराग्राफ्स जो हमने पढ़े थे, वहाँ पे ये अहले किताब ने एक सवाल किया था कुरान मजीद के हवाले से कि आसमान से उतरती हुई किताब आए और हम फिर उस पे ईमान लाएँगे। तो वहाँ पे उनके फ़बिमा नक़्दिहिम मिसाक़हुम, ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पे महज़ यही नहीं बल्कि और भी चीज़ें हैं, शरीयत के पहलू हैं, जो यहाँ पे बयान किए गए हैं और इन लोगों ने उन अहद-मुआहदों को, उन अक़ूद को, उन मिसाक को, उन जो है ना, उनको तोड़ा था और ज़ाहिर है कि ये मज़मून उसी तसलसल में जो अभी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल अक़ूद, यानी पिछले सूरतों के तसलसल में भी ये कुछ मज़ामीन आ रहे होते हैं, उसको भी हम साथ-साथ देख रहे होते हैं। अ, उसके बाद ये जो मज़मून है, अभी हमने पढ़ा है जिसमें या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल अक़ूद का आया है, तो ये आगे चल के आगे 1-2 पैराग्राफ्स के बाद ये मज़मून फिर रिपीट होगा। मैंने जैसा कि कहा कि ये तो इस वक़्त अहले ईमान के लिए है, आगे चल के ये बनी इसराइल और बनी इसराइल के अंदर दोनों जो दड़े हैं, यहूद और नसारा, उनके लिए ये मज़मून जो है ना शुरू हो जाएगा और ये मज़मून की जो नेचर है, वो है आया नंबर 12 और 14 के अंदर जो है ना वो बताया गया है, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल। ये इस तरह का अहद हमने बनी इसराइल से भी लिया था, यानी जिस तरह के अहद-मुआहदे की आपसे बात की जा रही है और अगले पैराग्राफ में जब हम आते हैं, तो वहाँ पे ये कहा गया कि वमिनल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा अख़ज़ना मीसाक़हुम फ़नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। ऐसा ही अहद-मुआहदा हमने जो है ना नसारा से भी लिया था और वो भी अपने इस अहद-मुआहदे को जो है ना भूल गए और ये ज़ाहिर है कि आगे आया नंबर 12, 14 1-2 पैराग्राफ्स के बाद वो चीज़ आ जाएगी। मैं ज़ाहिर है कि आगे बाज़-औक़ात तो नहीं ले आप लोगों को लेके जाता, लेकिन ज़ाहिर है कि यहाँ इशारतन बताना मकसूद है कि ये असल में जो अहकामात दिए जा रहे हैं, बनी इसराइल को बैकग्राउंड में सामने रख के जो है ना वो दिए जा रहे हैं और आगे बनी इस्माइल के जो मामलात हैं, उनको ज़ाहिर है कि साथ-साथ हमने ये देखना है। अच्छा, अगला पैराग्राफ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लु शआइरिल्लाहि वलश-शहरल हराम वलल हदिय वलल कलाइद वला आमीनल बैतल हराम यब्तगून फ़ज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना।
ये इसमें ये कहा गया कि ए ईमान वालो, तुम हलाल ना ठहरा लो किनको, ला तुहिल्लु शाआइरल्लाहि, ये अल्लाह के जो शायर हैं, उनकी बेहुरमती ना करो। हलाल ना ठहराओ यानी उनको ये कि बेहुरमती ना करो, उनकी तक़दीस ना तोड़ो, उनके एहतराम के जो पहलू हैं, उनको ना तोड़ो, उनकी बेहुरमती ना करो। ये वो चीज़ है जो यहाँ पे बताई जा रही है। यहाँ पे शाइरल्लाहि का जो लफ़्ज़ आया है, ये शाइरा की जमा होती है और अल्लाह की जो है ना, वो शायर की बात की गई है। ये क्या चीज़ है? शाइरा क्या चीज़ है? शाइरा कहते हैं असल में किसी भी सिंबल को कहते हैं, सिंबल को कहते हैं, किसी भी मज़हर को कहते हैं। ये मैं इसकी आपके सामने कुछ मिसालें रखता हूँ। ये अल्लाह की जो है ना कौन-कौन से जो है ना शाइरा हैं, वो उनको आपके सामने कुछ चंद मिसालें देखता हूँ। सबसे पहले अपनी ज़ुबान से इसको, अपने माहौल से, अपने कल्चर से इसकी चंद एक मिसालें देता हूँ और उसके बाद फिर हम इस मज़मून की तरफ आते हैं कि ये कौन-सी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात ने अपने सिंबल्स के तौर पे जो है ना बयान की गई हैं। आपने जब हम अपने माशरे में बात देखते हैं तो हम ज़ाहिर है कि किसी दोस्त को, किसी अपने अहबाब को जिनको हम मिलना चाहते हैं, अ, मुलाकात करना चाहते हैं तो हम अपना हाथ आगे बढ़ा देते हैं अस्सलामु अलैकुम के साथ, मुसाफ़ा करते हैं, बाज़ औक़ात मान का कर लेते हैं। तो ये जो मान का होता है, ये जो मुसाफ़ा होता है, ये भी एक सिंबल होता है। इसके पीछे कुछ हकीकत होती है, कुछ एहसासात होते हैं, कुछ जज़्बात होते हैं। वो जो एहसासात और जज़्बात होते हैं, यही शायरा होता है। यानी ये कि एक बड़ी हकीकत है और उसको किसी ख़ास सिंबल में पिरो दिया गया है। जब हम ज़ाहिर है कि अपने माँ-बाप को मिलते हैं या माँ-बाप जो है ना अपने बच्चों को मिलते हैं, तो आगे बढ़ के बोसा ले लेते हैं। तो ये आगे बढ़ के जो बोसा जो लेना होता है, ये बोसा इटसेल्फ जो है ना, आप जानते हैं कि ये एक सिंबल होता है। ये खुद अपनी ज़ात में कुछ नहीं होता, ये सिंबल होता है। ये माँ-बाप की जो मोहब्बत अपनी औलाद के लिए होती है या औलाद की मोहब्बत अपने वालिदैन के लिए होती है, उसके लिए जो है ना बोसा जो है ना एक ख़ास सिंबल। ये इंसानों की मजबूरियाँ होती हैं कि इंसान अपने एहसासात को, जज़्बात को किसी ख़ास सिंबल में डाल देते हैं। ऐसे ही जैसे जो है ना हमारे सामने कौमी तराना पढ़ा जाता है, हमारे सामने परचम होता है, फ्लैग होता है, नेशनल फ्लैग होता है, उसके सामने हम खड़े हो जाते हैं। ये क्यों खड़े होते हैं? यानी कपड़ा तो उसका गज़, डेढ़ गज़ का कपड़ा होता है, लेकिन क्यों खड़े हो जाते हैं? क्या हम कपड़े के लिए खड़े होते हैं? नहीं, हरगिज़ कपड़े के लिए खड़े नहीं होते। कपड़ा तो कपड़ा होता है, लेकिन वो एक सिंबल बन जाता है। सिंबल किस चीज़ का? कि वो हमारे मुल्क का जो ना झंडा है, हम उसके एहतराम में खड़े हो गए हैं, हम इस माशरे के एहतराम में खड़े हो गए हैं। हमारी लॉयल्टी, हमारी मोहब्बत अब उसका ज़ाहिर है कि वो एक ख़ास परचम है, एक ख़ास फ्लैग है, उसमें डल जाता है। ये सिंबल्स होते हैं जो इंसान जिसको इख्तियार कर लेते हैं। जब हम मज़हब की तरफ आते हैं, तो क्या मज़हब भी जो है ना वो इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है? मज़हब भी डेफ़िनेटली इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करता है। यानी ये कि जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो नमाज़ इटसेल्फ क्या है? वो इटसेल्फ एक एक्सप्रेशन है, सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है। ये कि हम जो है ना क़याम करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं। ये जितने भी हालतें हैं, ये बेसिकली हमारी आजिज़ी, इनकिसारी, अल्लाह के सामने झुक जाना, अल्लाह के सामने हाथ बाँध के खड़े हो जाना, अल्लाह के सामने अपनी गर्दन को झुका देना, अल्लाह के सामने अपनी कमर को झुका देना, अल्लाह के सामने अपनी सजदे की सूरत में पूरी शख्सियत को जो है ना गिरा देना। ये वो पहलू होते हैं, इसके पीछे बड़ी हकीकतें होती हैं। वो बड़ी हकीकतें ये होती हैं कि हमने एतराफ़ कर लिया कि अल्लाह ताला ख़ालिक और मालिक है, हम उसकी इबादत कर रहे हैं, वो हमारा माबूद है। ये जो एहसासात होते हैं, ये बेसिकली सिंबल्स में पिरो दिए जाते हैं। और इसके बाद क्योंकि हम अब जो है ना वो इहराम के हवाले से चीज़ें देख रहे हैं, तो इहराम के हवाले से वो तमाम चीज़ें जो ज़ाहिर है कि वहाँ मक्का में, मदीना के अंदर वो जो चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं, अब वो चीज़ें कौन-कौन सी हैं? ज़ाहिर है कि हमें मालूम है बैतुल्लाह है, वहाँ पे खाना काबा है। खाना काबा खुद जो है ना पत्थरों का बना हुआ है। पत्थर इटसेल्फ कुछ नहीं है, वो कोई हमारे लिए अहमियत की हामिल नहीं है। लेकिन असल चीज़ जो है ना, ये सिंबल जो है वो बैतुल्लाह है, वो हमारी नमाज़ को जो है ना एक तंज़ीम दे देता है, उसको हम यानी एक डायरेक्शन दे देता है, एक ख़ास डायरेक्शन में पिरो देता है। तो वो जब वो हैसियत इख्तियार कर लेता है, तो हमारे लिए वो उस काबिल एहतराम हो जाता है। काबिल एहतराम हो जाता है, ज़ाहिर है कि हमारी नमाज़ें ज़ाहिर है कि उसकी उसकी तरफ मुँह करके पढ़ते हैं। वो इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं होती, वो इटसेल्फ जो है ना ज़ाहिर है कि वो पत्थरों का जो है ना एक ढाँचा होता है। बाकी वो जो है ना सिम्बॉलिकली हम जानते हैं कि हम सिंबल के तौर पे जो है ना उसको रखते हैं, लेकिन असल उसके पीछे जो बड़ी हकीकत है वो ये कि हम अल्लाह ताला की ज़ात के हुक्म के सामने जो है ना वो झुके हैं, अपनी नमाज़ों को उसकी तरफ जो है ना रुख कर दिया है, ये वो असल चीज़ है, बड़ी हकीकत है। ऐसे ही जब
हम इस्लाम करते हैं, वहाँ पे हजर अस्वद पड़ा हुआ है। हजर अस्वद इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है। इस्लाम जब करते हैं तो इसका मकसद ये होता है कि अल्लाह के हाथ में अपना हाथ रख दिया है, यानी गोया कि वो सिंबल है अल्लाह के हाथ का। यानी वो ये कि हम अहद मुआहदा करते हैं कि अपनी ज़िंदगी तेरे जो है ना अहकामात के मुताबिक चलाएँगे, इसी को इस्लाम कहा जाता है। उसके बाद सफ़ा मरवा जो है ना सही करते हैं, तो उसके अंदर भी ज़ाहिर है कि वो जो पहाड़ हैं, वो इट्सेल्फ कुछ नहीं है। लेकिन जब वो असल सही के लिए जो है ना हमने सिंबल जो है ना मुतय्यन कर दिए हैं, और वो जो सिंबल्स हैं, वही शाइरा कहलाते हैं। और वो असल में सही की जो है ना जो इबादत है, उसके लिए जो है ना ज़ाहिर है कि वो बुत्तियाँ लगा दी गई हैं, वो एक जो है ना फ़र्क रख दिया गया है। अदरवाइज़ जो है ना वो पहाड़ इट्सेल्फ कुछ नहीं है हमारे लिए, असल में वो निशानात हैं। निशानात हैं जो मुतय्यन करते हैं कि यहाँ पे अल्लाह की इबादत जो है वो सही की सूरत में की जाएगी। ऐसे ही जब हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ के जब मिना में जाते हैं, जब हम अराफा से वापस आते हैं, तो शैतानों को कैंकरियाँ मारते हैं। वो वहाँ जो पिलर्स हैं या दीवारें हैं, वो कोई शैतान नहीं हैं। यानी ये बताया जाता है हाजियों को कि वो शैतान नहीं हैं। ये हमारे कैंकर मारने का जो सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन है, ये असल में इस चीज़ का इज़हार होता है कि हम पूरी ज़िंदगी जो है ना इस शैतान से लड़ेंगे, और ये कि हमारे अंदर भी शैतानियत पाई जाती है, हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में भी शैतानियत पाई जाती है। हम इन तमाम चीज़ों से लड़ेंगे और अल्लाह ताला की ज़ात की जो हमारे ऊपर जो शरीयत के पहलू हैं, उनको अपने ऊपर लागू किए रखेंगे, अल्लाह के अहकामात के सामने झुके रहेंगे। ये सारे के सारे सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे ये कि उनकी बेहुरमती ना करो, यानी अल्लाह ने जो अपने मज़हब के अंदर जो है ना ये शायरे रखे हैं, ये शायर रखे हैं, उनकी बेहुरमती ना करो। तो इसका मतलब ये है कि इसकी बड़ी हकीकतें जो है ना, जो इन इन सिंबॉलिक एक्सप्रेशंस के पीछे पड़ी हुई हैं, उनको इख्तियार कर लो, और उसके बाद ज़ाहिर है कि इनकी जो एहतराम के पहलू हैं, उसको भी सामने रखो। एहतराम के पहलू ज़ाहिर है कि शरीयत ने मुतय्यन कर दिए हैं, अब हम ज़ाहिर है कि उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। यानी जो कुछ इन मकामात के लिए हमने जो कुछ करना है, वो बता दिया गया है। इसके अलावा जो है ना, अब हम उस पत्थर को ये समझ के कि ये पत्थर वाक़यतन जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात का हाथ है, ऐसा जो है ना वो नहीं करेंगे, और उसके बाद उस पत्थर को पूजना शुरू कर देंगे। नहीं, हरगिज़ नहीं। यानी वो सिंबल तो ज़रूर रहेंगे, वो सिंबल जिन बड़ी हकीकतों के हैं, वो उनकी जो है ना हम अपने ज़हन में हमेशा तरोताज़ा रखेंगे। लेकिन ये कि उनकी फ़िज़िकली भी जो है ना ज़ाहिर है कि उनका एहतराम भी मकसूद है, और उसके पीछे असल चीज़ जो है, बड़ी जो हकीकतें हैं, उनको भी सामने रखना है। ये बात जो है, ये कही जा रही है यहाँ पे कि उन शायर हैं, जो उनको इस तरीके से सामने रखना है। ये अल्लाह के, यानी इनको शायर कहा गया है, तो ये गोया कि शरीयत ने मुतय्यन करके आपने सामने जो है ना मकामात रख दिए हैं। अब हम इनको महज़ ये नहीं कहेंगे कि ये मेरे और आपके शायरे हैं। यानी जिस तरह हम जो है ना वो हाथ मिला लेते हैं, मुआनका कर लेते हैं, बोसा कर लेते हैं, फ्लैग के सामने खड़े हो जाते हैं, ये हमारे तहज़ीबी पहलू हैं, ये हमारी सकाफ़त के पहलू हैं, ये इंसानों ने बनाए हैं, और ये अल्लाह ने बनाए हैं। ये अल्लाह ने बतौर शरीयत दिए हैं, इनको जो है ना बेरुहमती नहीं करनी। वला शहरल हराम, उसके बाद कहा कि कुछ महीने हैं, हराम महीने हैं, उनकी भी जो है ना बेहुरमती नहीं करनी। ये महीने कौन से हैं? ये हमें मालूम है, ज़ुल्क़ादा है, ज़ुल्हिज्जा है, और मुहर्रम है, और रजब है। ये 4 महीने हैं। 3 महीने जो है ना वो उसके हज के मौसम के हैं, और 1 महीना रजब का जो है ना वहाँ से बाहर का है। ये महीने जो है ना ये मुतय्यन कर दिए गए हैं। बाद औक़ात ये सवाल आता है कि क्या बाकी महीने मुहर्रम, यानी उनकी क्या हम कि उनकी हमारे ऊपर कोई हुर्मत नहीं लागू होती? क्या उनका एहतराम नहीं करना? ये बात नहीं होती। ये बात जो है ना बेतुका यानी एक मुतलका सवाल नहीं है। असल चीज़ ये होती है कि बाज़ औक़ात बाज़ लम्हे ऐसे होते हैं कि वो एक ख़ास यानी चीज़ को मुतय्यन कर देते हैं। जगह भी होती हैं, जगह अभी आपको जो है ना एग्ज़ाम्पल्स दी हैं, वो जगह कौन-सी हैं? ज़ाहिर है कि बैतुल्लाह है, हजर अस्वद है, इस तरह जो है ना बाकी चीज़ें जो आपके सामने रखी हैं, ये जगह हैं, जगह मुतय्यन जगह हैं। बाज़ औक़ात वक़्त भी जो है ना अपनी ख़ास जो है ना वो एक सिंबल यानी उस शईरा के लिए इस्तेमाल हो जाता है। वो क्या है? वो ज़ाहिर है कि जैसे हमें मालूम है कि 5 नमाज़ें रोज़ाना हम पढ़ते हैं, ख़ास वक़्त में नमाज़ें पढ़ते हैं। हर वक़्त जो है ना हमारे लिए काबिल एहतराम है, हर लम्हा काबिल एहतराम है। लेकिन वो लम्हा नमाज़ के लिए होता है, जिस मकसद के लिए होता है, वो उस लिए जो है ना मोहतरम हो जाता है। ऐसे ही जुमे का दिन आता है, तो जुमा का पूरा दिन जो है वो ख़ास लम्हे के लिए, वो ज़ाहिर है जुमे का दिन है, वो जो लम्हा होता है जुमे का, वो उस हवाले से जो है ना मुतय्यन हो जाता है, और उसकी अहमियत बढ़ जाती है। ऐसे ही जो है ना, यानी अगर हम हफ्तों के बाद महीनों में जाएँ, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने ये महीने जो है ना काबिल एहतराम ठहरा दिए हैं। क्यों ठहरा दिए हैं? कि इन महीनों के अंदर जो है ना उम्रा किया जाता है, इन महीनों के अंदर हज किया जाता है, और इसके पीछे हज और उम्रा खड़ा है।
असल चीज़ ये नहीं है कि ये महीने इटसेल्फ जो है ना वो हुर्मत के हैं। महीने बाकी महीनों की तरह हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जिस तरह मैंने नमाज़ की मिसाल दी, जिस तरह मैंने जुमे की मिसाल दी, ऐसे ही इन महीनों की मिसाल दे रहा हूँ कि बाकी महीने भी जो है ना उसी तरह काबिल एहतराम हैं। लेकिन यूँ ही जो है ना ये हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र आता है, तो इसके पीछे जो है ना वो ख़ास क्या चीज़ है, वो इसके पीछे ख़ास चीज़ जो है ना वो हज और उम्रे का मौसम है। वो उस वजह से जो है ना वो काबिल एहतराम हो जाते हैं, और जब उस वजह से काबिल एहतराम होते हैं, तो हम उसकी भी जो है ना बड़ी हकीकतें जो पीछे हैं, उसको सामने रखते हुए वो चीज़ों को लेके चल रहे होते हैं। और उसके बाद ये कहा कि वलल हदिय, ये कि हद जो हदी के जानवर हैं, उनकी भी जो है ना एहतराम करो, उनकी भी बेहुरमती ना करो। हदी के जानवर क्या हैं? हदी ये वही लफ़्ज़ है जिसको हम उर्दू ज़ुबान में हदिया कहते हैं, यानी जो अल्लाह ताला की ज़ात के लिए हदिये के तौर पे कुर्बान कर दिए जाते हैं। और ये इसकी आगे ख़ास मिसाल दी है, इसको यानी आम लफ़्ज़ को उठा के फिर उसके बाद उसको ख़ास कर दिया है, वलल कलाइदा। ख़ास तौर पे वो हदिये के जानवर जो तुम हज के ज़माने में या उम्रे के ज़माने में लेके चलते हो और उनके पटे बाँध लेते हो। ये कलाइद जो है ये कलादा की जमा है, इसका माना पटा होता है। ये जानवरों के गले में जो पटा बाँध देते हैं उसके लिए लफ़्ज़ इस्तेमाल होता है, और ये जमा की सूरत में यहाँ पे आया है। कलादा यानी ये एक यानी पटे के लिए आता है। लफ़्ज़ जो तक़लीद बोलते हैं, वो भी इसी से निकला हुआ आता है। गोया कि हम अपने ऊपर एक पटा बाँध लेते हैं और ख़ास लोगों की जो है ना, वो पैरवी करना शुरू कर देते हैं, तो उसी से लफ़्ज़ तक़लीद निकला है। ये कलायत, कलादा और ये कि जानवर जिनके गलों पे पटे बाँध दिए जाते हैं, ये किसी ज़माने में रवायत रही है कि जब हाजी हज के लिए या उम्रे के लिए जाया करते थे, तो अपने साथ जानवर लेके जाया करते थे। वो जो जानवर होते थे, इस उन जानवरों को भी मुमताज़ करने के लिए, अलग करने के लिए उनके गलों में ख़ास तरह के पट्टे बाँध दिया करते थे कि ये जो अब जानवर हैं, ये इस ख़ास मकसद के लिए होंगे कि ये अल्लाह के घर पे जो है ना जाके इनको कुर्बान किया जाएगा। तो ये ज़ाहिर है कि वो ख़ास शाइरा है, ख़ास जो है ना वो पहलू है जिसको नुमायाँ करना मकसूद है। अब ये रवायत ख़त्म हो गई है, यानी अब हम ये चीज़ नहीं मिलती। अगर आप वहाँ जाएँ, हज के लिए जाएँ, उम्रे के लिए जाएँ, तो अब लोग अपने साथ नहीं लेके आते। हमें मालूम है सीरत नबी की किताबों से कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उम्रे के लिए, हज के लिए आए थे और सुलह हुदैबिया पे जब उनको रोक दिया गया, और उसके बाद वहीं पे जहाँ पे वो मुसलमान थे, वहाँ पे ही उन्होंने अपने जानवर जो है ना ज़िबा कर दिए थे, जो अपने साथ लेके आए हुए थे। तो ये ज़ाहिर है कि उन जानवरों की जो आप उम्रे के लिए, हज के लिए अपने साथ लेके आते हैं, उनके लिए ये पहलू है जिसको यहाँ पे नुमायाँ किया गया है। उनका भी ज़ाहिर है कि उनकी बेहुरमती ना करो। बेहुरमती ना करो यानी जो इसके साथ एहसासात वाबस्ता हैं, उनको एहसासात को जो साथ लेके जा रहे हैं, उनको ये कहा गया, यानी ज़ाहिर ये होता है कि जब भी आप कुर्बानी का जानवर भी जब आप मुतय्यन कर देते हैं, तो आपके एक तरह के एहसासात जो है ना, वो एक ख़ास सिमत में यानी उस जानवर पे जो है ना, वो मुतय्यन हो जाते हैं कि ज़ाहिर है कि इसको अल्लाह के लिए जो है ना, ज़ाहिर है कुर्बान करना है। ये इसका ज़ाहिर है कि शायरा के पीछे ये पहलू होता है। और उसके बाद ये कि दूसरे लोगों को भी ये कहा गया कि ज़ाहिर है कि इनको इनको छेड़खानी ना इनके साथ करें, ये कि इनको चोरी ना करें, इनको ये कि इनको लूट-मार ना करें, ये कि जो है ना इनको तंग ना करें। ये सारी पहलू ज़ाहिर है कि इसके अंदर बेहुरमती के अंदर ये चीज़ें शामिल हैं। अच्छा, इसमें एक ख़ास पहलू है जो आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूँ, वो ये कि जब ये कहा गया कि इन हदिये के जो है ना जो जानवर हैं, जिनके गलों में पट्टे बंधे हुए हैं, और ये मैंने ये कहा कि ये रवायत अब ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पे तो शायरा के तौर पे उनको पेश किया जा रहा है। यानी क्या हम जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात ने अगर किसी चीज़ की तारीफ़ कर दी है, तो क्या अब हम लाज़मी तौर पे उसको इख्तियार करेंगे? यानी ये उस वक़्त की एक रस्म थी, जिसको बयान कर दिया और उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने शामिल कर दिया कि इस पहलू से कि उन जानवरों के गले में नज़र के पट्टे बंधे हुए हैं। ठीक है? और ये कि ये हुक्म क्या अब हम हर बहर तौर इसको करना है, हर सूरत करना है, ऐसा नहीं होता। यानी ये भी यानी शरीयत खुद बताएगी कि ये वो चीज़ है जिसको बतौर शरीयत इख्तियार करना है, और ये वो चीज़ है जिसको आपके इख्तियार में दे दिया है। अगर आप करेंगे तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो कोई मसला नहीं। लेकिन जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात ने उसको एप्रिशिएट किया है। यानी जानवरों के गले में जो है ना पट्टे बाँध दिए जाते हैं, ये भी एक तरह के बाकी जानवरों से उनको जुदा कर दिया जाता है। उनको एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन के तौर पे एक एहसासात और जज़्बात का जो है ना हिस्सा बना दिया जाता है। ज़ाहिर है कि उसको अल्लाह ताला की ज़ात ने इसको एप्रिशिएट किया है। इसको अगर समझना हो तो बड़े खूबसूरत तरीके से जो सूरह जुमा की आया है, या अय्युहल्लज़ीना, मैंने ऊपर उसको नोट किया हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि फ़ाइज़ा क़ुदियतिस सलातु
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب آپ جمعے کی نماز پڑھ لو تو اس کے بعد زمین میں پھیل جاؤ، زمین میں نکل جاؤ تاکہ تم اللہ کا رزق تلاش کرو۔ کیا یہ لازمی ہے کہ ہم ایسا کریں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یعنی شریعت نے ہمارے اوپر کوئی لازمی نہیں ٹھہرایا، اگر آپ نماز کے بعد سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، ایسے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ بات اس نوعیت کی ہے کہ یہ آپشنل چیز ہے۔ ایسے ہی ولل قلائدہ، یہ کوئی لازمی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی ولل ہدیہ کہ یہ آپ نے لازمی طور پہ اپنے ساتھ لے کے جانا ہے۔ وہاں پہ اب یہ چیزیں اویلیبل ہیں، ہم اس کو جو ہے نا اختیار کر لیں گے، یہ چیز ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ ولا، اور نہ ہی جو ہے نا آپ نے بے حرمتی کرنی ہے ان کی آمین البیت الحرام، اور وہ لوگ جو عازم سفر ہوتے ہیں۔ آمین کا جو لفظ ہوتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والے، عازم، تو یہ بھی مشکل لفظ ہے اردو میں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو سفر کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کوئی کام کرنے کا، اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بیت الحرام، کہ جنہوں نے بیت اللہ کا حج کرنے کا سفر کا جو ہے نا ارادہ باندھ لیا ہے، عازم سفر ہو گئے ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یعنی یہ پورا کا پورا پیکیج ہے، یعنی یہ کہ انسان حج کا ارادہ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ جو حاجی ہوتے ہیں، وہ بیسیکلی حج صرف حج یہ نہیں ہے کہ آپ نے ایک خاص جگہ پہ حج کرنا ہے، یعنی وہ تو ہونا ہی ہے، لازمی طور پہ ہونا ہے، خاص جگہ پہ ہونا ہے، لیکن یہ پورا کا پورا پیکج بن جاتا ہے کہ جب آپ نے احرام باندھ لیا، آپ نے جو ہے نا کپڑے پہن لیے، آپ کے ساتھ جو ہے نا ہدیے کا جانور جو ہے نا ساتھ آ گیا ہے، اب وہ پورا کا پورا پیکج ہے، انسان جو ہے نا ان کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے، اس ساری کی ساری موومنٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کہ ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان سب چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور جو ظاہر ہے کہ حرام کے بیت اللہ کے جو ہے نا وہ گھر کی طرف جنہوں نے سفر باندھ لیا ہے، ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو، ان کو بھی احترام کے ساتھ جو ہے نا ان کے ساتھ معاملہ کرو۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا فضل چاہتے ہیں، من ربہم، اپنے رب کا فضل چاہتے ہیں اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، رضوان خوشنودی چاہتے ہیں، فضل اس کی عنایت چاہتے ہیں، اس کی مہربانی چاہتے ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اپنے رب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حج کے لیے نکلے ہیں، اور ان کی بھی جو ہے نا بے حرمتی نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور اس کے بعد کہا کہ جب تم اس احرام سے باہر آ جاؤ، یعنی ابھی یہ کہا تھا نا غیر محل الصید، اب اس کا جو انجام ہے آخر تک پہنچا دیا کہ آپ نے جب آپ نے احرام باندھ لیا، اور یہ کب تک چلے گا، یہ کب تک چلے گا، اس کے لیے پھر جو ہے نا یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم ظاہر ہے کہ اس احرام سے باہر نکل آؤ تو اس کے بعد یہ شکار کر سکتے ہو، اس کے بعد یہ شکار کر سکتے ہو۔ یہ جو شکار کا لفظ آیا فستادو، یہ بھی دراصل جو ہے نا اصل میں جو میں نے پہلے یہ آیا پڑھی تھی فائزہ قضیت الصلاۃ، وہ اس سے متعلق ہے۔ یہ فستادو کا جو ہے یہ لفظ، یہ ہے کیا ہے، یہ کہ تم شکار کر سکتے ہو، یہ کوئی لازمی نہیں ہے، یہ کیونکہ امر کا صیغہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، تو امر کا صیغہ بعض آپ ترجمہ میں دیکھیں گے کہ اس کے بعد شکار کرو، یعنی یہ ایک تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ بھئی کیوں شکار کیوں کریں، یہ کوئی شریعت کا حصہ ہے، لازمی حصہ ہے کہ اس احرام کو اتار دینے کے بعد جو ہے نا وہ شکار کرو۔ اس کو استاد محترم نے نیچے ترجمے میں رکھا ہے شکار کر سکتے ہو، یعنی جو پابندی تم پہ لگی تھی غیر محل صید کہہ کے لگی تھی، اب وہ پابندی تم سے اٹھ گئی ہے۔ اصل بات جو ہے وہ بات یہاں پہ آ کے کنکلوڈ ہو جاتی ہے کہ وہ پابندی اٹھ گئی ہے، اب آپ اس کے بعد شکار کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، یہ کوئی لازمی نہیں ہے کہ تم لازمی طور پہ شکار کرو، شریعت نے کوئی چیز متعین کر دی۔ جو اوپر میں نے حوالہ تھا فائزہ قضیت الصلاۃ، وہ سوری وہ پچھلی آیا کے متعلق نہیں تھا، وہ اس سے متعلق تھا اصل میں، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، یہ کہ تم جو ہے نا وہ شکار کر سکتے ہو، یہ کوئی تمہارے اوپر کوئی لازمی نہیں ہے۔ اس کے بعد جب یہ بات مکمل ہو گئی، یہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو کون کون سی چیزیں ہیں اللہ کے شاعرہ کے طور پہ کہ ان کے احترام کرو، حرام مہینوں کا احترام کرو، اس کے بعد ہدیے کے جانوروں کا کرو، خاص طور پہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے باندھے ہوئے ہوں، اور اس کے بعد وہ حاجی جو ظاہر ہے کہ اللہ کے گھر کا جو ہے نا آم، آ، اللہ کے گھر کے لیے حج یا عمرے کی ادائیگی کے لیے چل کھڑے ہوتے ہیں، ان کا بھی احترام کرو۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کو بیان کی ہیں، اور یہ کس کی وضاحت میں آئی ہیں، یہ غیر محل الصید، اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کا عام اسلوب ہے، جب ایک چیز کو کھولتا ہے تو اس کے ساتھ متعلقہ باقی چیزوں کو بھی بیان کرتا چلا جاتا ہے، یہ اسی اسلوب میں یہ بات یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو خاص بات کہی گئی تھی کہ ولا آمین البیت الحرام، اس کو مزید کھولا ہے، یعنی قرآن مجید بعض اوقات جو ہے نا ایک ہی جگہ پہ ایک بات آتی ہے پھر اس کو کھول دیتا ہے۔ یہ غیر محل الصید وانتم حرم کی بات آئی تھی، تو دراصل ابھی تک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے وہ بنیادی طور پہ اس کی وضاحت ہے
یہ جو ابھی پیراگراف پڑھ رہے ہیں، یعنی یوں کہہ لیں کہ اصل تو مضمون تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام، یہ جو مضمون ہے اصل مضمون یہ ہے، اور یہ مضمون آگے چل کے آیت نمبر 3 میں پھر جڑ جائے گا، یعنی آیت نمبر 2 اور یہ پوری پڑھ چکنے کے بعد ہمیں معلوم ہوگا کہ اصل میں احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، یہ جو مضمون ہے یہ آگے آیت نمبر 3 میں جا کے جڑ جائے گا، لیکن ابھی جو چیز وضاحت آ رہی ہے وہ کس کے تحت آ رہی ہے، وہ اصل میں آ رہی ہے غیر محل الصید، کہ آپ نے یہ شکار کو احرام کی صورت میں جائز نہ ٹھہرا لینا، اس کی وضاحت میں یہ چیزیں آئی ہیں، اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ مزید چیزیں بھی قرآن مجید کا جیسا کہ اسلوب ہے وہ کھولتا جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ چیزیں ہمارے سامنے اب وہ آ گئی ہیں۔ اب یہ کہ شکر صاحب ایک کوشچن ہے یہاں پہ، جی جی تھینک یو۔ یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ ہمارے علاقوں میں کچھ لوگ جو نا وہ مطلب کسی ایک جانور کو جو نا فکس کر دیتے ہیں کہ مطلب کوئی بیماری آئی ہے تو وہ کہتے ہیں جی اے اللہ یہ جانور جو ہے نا میں آپ کے راستے میں ذبح کروں گا جب یہ بڑا ہو جائے گا، تو وہ اس جانور کو جو نا ایک خاص جو نا وہ مقصد کے لیے جو نا وہ فکس کر دیتے ہیں، تو اس کی ہمارے مذہب میں جو نا وہ کیا جو نا وہ اہمیت ہے اور اس کو کس طرح سے دیکھا جانا یہ چاہیے؟ عمومی طور پہ یہ چیز، یہ کہ کوئی چیز قربان کرنا ہے، یہ تو ایک تو قربانی ہے اصل میں، جو سنت کا حصہ ہے، لیکن بعض اوقات ہم قربانی کو جو ہے نا مختلف مواقع پہ جو ہے نا وہ ہم قربان کر دیتے ہیں جانوروں کو۔ اس میں ایک بہترین مثال جو ہے وہ یہ کہ ہم ولیمہ جو ہوتا ہے، نکاح کی سیریمنی ہوتی ہے، ایک خوشی میں جو ہے نا اس چیز کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم نے جو ہے نا ایک بامقصد کام، ایک جو ہے نا شریعت کا کام کیا ہے اور ایک نئی زندگی کا آغاز کیا ہے، اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہم جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور اپنے احباب، دوستوں، رشتہ داروں اور جو بھی غریب ہوتے ہیں لوگ، ان میں گوشت کو تقسیم کرتے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے۔ ایسے ہی ظاہر ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہم بچہ یا بچی کے یعنی اس خوشی میں جو ہے نا ہم عقیقہ کرتے ہیں، ان جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ ایک اسی قربانی کا ایک پہلو ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ کے اوپر کوئی غم کا پہلو آتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ جو ہے نا ہم اس کی طرف راغب ہو جاتے ہیں، جیسے ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، جیسے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی قربانی دے دیتے ہیں۔ اس پہلو سے چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے، ادروائز جو ہے نا کوئی اس کے لیے خاص کوئی اور اس کے لیے موقع محال تلاش کیا جائے، میرا نہیں خیال کہ کوئی مناسب ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ لوگ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ جس طرح ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں مشکل حالات میں، جیسے ہم جو ہے نا کوئی قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، یہ ایک طرح کا جو ہمیں نفسیاتی تسکین بھی ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے ظاہرہ یاد کر رہے ہوتے ہیں مشکل حالات میں، اور اسی طرح جو ہے نا قربانی بھی کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج کی ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اچھی بات ہے، اس کو سراہنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی اور کچھ ذہن میں کوئی تصور ہو تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس نوعیت کا ہے، کوئی اس کے اندر کوئی شرک تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کی کوئی دوسری چیزیں تو نہیں ہیں، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہو جاتی ہے۔ جی، تو اس میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ جانوروں کو، یہ جو ہمارے علاقوں میں کچھ بزرگ ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے نا وہ مختص کر دیتے ہیں۔ جی وہ آگے یوں ہی آئے گا نا، یہ آگے آیا نمبر آ رہی ہے، یہ آیا نمبر 3 ہے اس کے بعد والی، تو میں آپ کا یہ سوال وہاں پہ ٹیکل کر لوں گا کہ وہ اس کے ساتھ براہ راست یہ متعلقہ ہے، اہل لغیر اللہ کا جو لفظ آگے آئے گا میں اس میں جو ہے نا اس کو مزید وضاحت کر دوں گا۔ تھینک یہ یو۔ بالکل ناجائز ہے، یہ جو صورتحال جو آپ کے سامنے رکھی ہے نا بزرگوں کے ساتھ مختص کر دینا، یہ تو شرک ہو جاتا ہے۔ اس کو جو یہ والا حصہ جو ہے اس کے ساتھ اس کو مزید اس کو کھولوں گا۔ جی جی شکریہ۔ جی چلیں آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، یہ جو ابھی بات میں نے کہا کہ ہم نے پڑھی ہے کہ جو لوگ عازم سفر ہوتے ہیں بیت اللہ کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہ جو لوگ ہیں ان کا احترام ملحوظ رکھنا ہے۔ اب اس کو مزید آگے کھولا ہے، وہ یہ کہا ہے کہ تمہیں نہ ابھارے، ولا یجرمنکم، یہ جو لفظ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھارنا، برانگیختہ کرنا، کس چیز کو سبب بن جانا،
تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ کسی قوم کی دشمنی، شنعان کا مطلب ہوتا ہے بغض ہوتا ہے، دشمنی ہوتا ہے، کسی سے منفی جذبات کسی دوسرے شخص کے لیے، اس کے لیے لفظ آتا ہے شنعان۔ اور قوم، قوم کا مطلب ظاہر ہے کہ لوگ ہیں، کہ کسی قوم کی کسی یعنی لوگوں کی دشمنی یا ان کا بغض جو ہے نا تمہیں نہ ابھارے۔ کس چیز کے لیے نہ ابھارے؟ کہ تم اس کی بنیاد پہ انصدکم، کہ وہ تمہیں مجبور کر دے، ابھارے کہ تم راستہ روکو انل المسجد الحرامی، لوگوں کا راستہ جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی قوم کی دشمنی، کسی قوم کا بغض یہ تمہیں نہ ابھارے کہ تم اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کو جو مسجد حرام کی طرف جا رہے ہیں ان کو روکو، ان تعتدوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، ان کے ساتھ جو ہے نا حدود سے تجاوز کر جاؤ۔ یہ تعتدوا کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ پیچھے کہا گیا تھا کہ ولا آمین البیت الحرام، یہ اس کی وضاحت یہاں پہ آئی ہے، اس کو مزید کھولا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی جو ہے نا، وہ کسی قوم کے ساتھ جو ہے نا کوئی اس طرح کا معاملہ جو بغض کا معاملہ ہے، دشمنی کا معاملہ ہے، اور کسی قوم سے مراد ظاہر ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون سی قوم ہے، یہ مشرکین مکہ ہے۔ مشرکین مکہ جو ہیں انہوں نے، ہمیں معلوم ہے کہ کسی مرحلے پہ مسلمانوں کو وہاں پہ عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے روک دیا تھا، اور روک دیا تھا جس کے نتیجے میں مسلمان نہ حج کر سکے تھے اور نہ جو ہے نا عمرہ کر سکے تھے۔ اور یہ کہ انہوں نے غلط کام کیا تھا، اور اب جب کہ تمہارے ساتھ اس طرح کی کوئی صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ کسی دوسری قوم نے غلط کام کیا ہے اور اس کے جواب میں تم بھی غلط کام کر بیٹھو، اس چیز کو یہاں پہ منع کیا گیا ہے۔ وہاں یہاں جب اوپر کہا گیا تھا کہ جو بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں ان کی حرمتوں کا خیال رکھو، ان کو عزت احترام کا جو ہے نا خیال رکھو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور اس کو مزید کھولا کہ اب کسی قوم کی دشمنی جو کہ مشرکین مکہ کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی، وہ تمہیں نہ ابھارے کہ لوگوں کو مسجد حرام سے جو ہے نا روکنے سے، جانے سے روک دے، یہ ہرگز نہ کرو۔ اس کے بعد کہا وتعاونوا علی البر، اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، والتقوی، اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، اور اس کے بعد حق تلفی اور زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرتے رہو، اس کا تقوی قائم رکھو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سخت سزا دینے والی ہے۔ یہ ترجمہ میں نے کر دیا، اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کیا چیز ہے کہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو کسی قوم کی دشمنی تمہیں نہ ابھارے کہ مسجد حرام کی طرف تم جو لوگ جا رہے ہیں ان کی بے حرمتی کرو اور تم حدود سے تجاوز کر جاؤ، یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے۔ یہاں پہ ایک چیز ہے جو آ، ظاہر ہے کہ جو تھوڑی سی گہری نظر کے ساتھ پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، جو بیت اللہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں یہ اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد یوں ہی اس کو مزید کھولا تو یہ کہا کہ ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدکم عن المسجد الحرام، کہ تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس چیز پہ نہ ابھارے کہ تمہیں مسجد حرام پہ جانے طرف جانے والے لوگوں کو تم راستہ روکنا شروع کر دو۔ یہ ایک سٹیج پہ ظاہر ہے انہوں نے ایسا کیا تھا۔ اب یہ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، یہ جس زمانے میں یہ قرآن مجید کی آیات اتری ہیں، کیا وہ جانے والے لوگ جو ہیں وہ مسلم ہیں یا مشرک ہیں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بحث ہے تفسیروں کے اندر۔ آ، یہاں پہ خاص طور پہ کس کنٹیکسٹ میں جو ہے نا اس چیز کو سمجھا جاتا ہے، وہ سورہ توبہ کی آیت ہے جس میں اوپر میں حوالہ بھی دیا ہوا ہے، وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، بے شک جو مشرک لوگ ہیں وہ نجس ہیں۔ نجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاک ہیں، اور ان کو مسجد حرام کے قریب نہ جانے دو، فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ ان کو پھٹکنے دو۔ یہ جو حکم ہے جب اس کو اس کے ساتھ رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو یہاں پہ ایک طرح کی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے کہ جب یہ حکم آیا ہے کہ آپ نے بے حرمتی نہیں کرنی، اور بے حرمتی ان لوگوں کی جو بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں تو وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اللہ کی خوشنودی جو ہے نا تلاش کر رہے ہیں، تو اب یہاں پہ متعین کرنا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیا مشرک لوگ ہیں یا یہ مسلمان لوگ ہیں،
اور اس کے بعد یہ کہا کہ ماضی میں ایک واقعہ پیش آیا، اس کی دشمنی کی بنیاد پہ تم نے اب جو ہے نا لوگوں کو مسجد حرام جانے سے روکنا نہیں ہے۔ یہاں پہ دو رائے بن گئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے انما المشرکون نجس، یہ اصل میں یہ کب متعلق ہوتی ہے کہ یہ مشرک جو ہے نا نجس ہیں، یہ فتح مکہ کے بعد 2 سال بعد جو ہے نا یہ اصل میں یہ حکم پڑھ کے سنایا گیا تھا وہاں پہ مکہ کے اندر۔ یہ حکم پڑھ کے وہاں اس وقت جب یہ سنایا گیا تو یہ میں نے کہا کہ 2 سال کا وقفہ یہ گزر چکا ہے، اور اس کے بعد بعد عامہم حاذا کا لفظ آ گیا ہے کہ اس سال کے بعد جب یہ اگر اعلان کیا جاتا کہ آج کے بعد، تو یہ حکم اسی دن جو ہے نا متعین ہو جاتا ہے کہ آج کے دن کے ساتھ جو ہے نا جس دن یہ پڑھ کے سنایا گیا تھا اسی سے متعلق ہو گیا ہے۔ یا یہ کہا جاتا کہ اس مہینے کے بعد، تو ظاہر ہے کہ اس مہینے سے اس مہینے کی اینڈ تک جو ہے نا یہ حکم چلتا رہتا، یعنی اس وقت تک لوگوں کو الاؤ یعنی کیا جاتا۔ جب یہ کہا کہ بعد عامہم حاذا، تو یہاں پہ گویا کہ ایک طرح کی ایکسٹینشن دے دی گئی ہے کہ اب اس سال کے اندر اندر جو اسلامی مہینہ یا اسلامی سال تھا، اس سال کے اندر اندر جو ہے نا یہ یعنی اس کے بعد جو ہے نا لوگوں کو یہاں جو مشرک لوگ ہیں وہ یہاں نہیں آ سکتے، وہ نجس ہیں، وہ ناپاک ہیں۔ یہ ناپاک ان کے عقیدے کی جو ہے نا ناپاکی ہے، انسانوں کی ناپاکی نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا عقیدہ ناپاک کر دیتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا مشرکین یہاں پہ نہیں آ سکتے۔ جب اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا یہ آیت کا جو ہے نا مقام اور موقع اور حل متعین کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو حج کے لیے آتے ہیں، کیا یہ مشرکین کے لیے لفظ بولا ہے یا یہ مسلمانوں کے لیے لفظ بولا ہے؟ عام طور پہ عام تفسیروں میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ یہ جو لفظ بعد عامہم حاذا کا آ گیا ہے، تو گویا کہ یہ چھوٹ دی گئی ہے، اور ان کو جو حاجی وہاں پہ جا رہے ہیں یہ مشرک ہیں، اور ان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ مشرک ہیں یعنی ملے جلے ہیں، اس میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں جو ہے نا کٹر قسم کے مشرک بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ عام تفسیروں کے اندر آپ کو یہ چیز ملے گی، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یوں ہی یہ حکم آ گیا تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ آ، یہ کہ اس کے بعد مشرکین کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ جو ابھی آیا اوپر ہم نے پڑھی ہے، یہ بعد عامہم حاذا اس سال سے پہلے پہلے سے متعلق یہ آیا ہے۔ عام تفسیروں میں آپ یہ دیکھیں گے۔ ایک اور رائے پائی جاتی ہے جو استاد محترم کی رائے ہے، اور کچھ اور لوگوں کی بھی رائے ہے، یہ صرف استاد محترم کی نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کی بھی رائے ہے۔ وہ رائے یہ ہے کہ یہ اصل میں جو حاجی جانے والے ہیں یہ اسلام قبول کر چکے ہیں، یہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ اور اس کی دلیل یہ ہے، کیونکہ ہم دلیل کی بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور دلیل ہم اسی آیت سے لے کے آتے ہیں، ہم باہر سے دلیل جو ہے نا نہیں اٹھاتے۔ اس آیت کے اندر بنیادی طور پہ جب یہ کہا گیا کہ ان حاجیوں کو جو اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں اور اللہ کی خوشنودی تلاش کرنے کے لیے نکلے ہیں، یہ جو الفاظ ہیں یہ مانے ہو جاتے ہیں کہ ان کو مشرکین کے ساتھ نہ جوڑا جائے، ان کو ان کے ساتھ جوڑا جائے جو اب اسلام قبول کر چکے ہیں، جو اب اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ ایک چیز انسانی نفسیات ہوتی ہے، یوں کہہ لیں کہ جب پرانے دور میں کچھ لوگوں نے آپ کے ساتھ کچھ معاملہ کیا ہو تو گو کہ ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہو بھی جائیں تو ایک طرح کا ایک فرق جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اس فرق کے ساتھ جو ہے نا ملحوظ خاطر کرتے ہوئے، اس فرق کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اب جب کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، اور یہ جو مسلمان ارد گرد کے علاقوں سے حج کرنے کے لیے جا رہے ہوں، اور اب کیونکہ ماضی میں ایک واقعہ تمہارے سامنے ہو گیا تھا، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا، اب اس طرح کا معاملہ تم نے نہیں کرنا کہ باقی لوگوں کو روکنا شروع کر دو۔ اور یہ جانے والے حاجی جو ہیں یہ اسلام قبول کرنے والے لوگ ہیں، اور جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو سورہ ہے یہ آخری دور کی سورہ ہے، اور اس دور تک جو ہے نا عربوں کے ہاں جزیرہ نمائی عرب فتح مکہ کے بعد بہت سارے علاقے جو ہے نا مسلمان ہو چکے تھے، اور یہ اسی کنٹیکسٹ میں رکھتے ہوئے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ یعنی یہ والا جو پہلو ہے کہ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، یہ رکاوٹ بن جاتا ہے کہ اس کو ہم مشرکین کے ساتھ جوڑیں۔ یہ ایک طرح کی تعریف کی گئی ہے، تحسین کی گئی ہے، اور ایک گلوریفائی کیا گیا ہے ان کے اس کام کو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس طرح شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں، اللہ کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں، اور جب یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو پھر جو ہے نا یہ ہم اس کو مشرکین کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ اس کو ہم لازمی طور پہ اٹیچ کریں گے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ یہ جیسا کہ یہ چیز واضح ہو گئی، یعنی اب یوں کہیں کہ
یہ اصل میں آیا جو ہے یہ والا حصہ یہ مسلمانوں کے لیے ہے، اور اگر اس میں کچھ چند ایک مشرک بھی اس زمانے میں جا رہے ہوں، جس طرح بعد عامہم ھذا کی بات کی گئی ہے، تو وہ علی سبیل التغلیب ہم جو ہے نا اس چیز کو مان لیں گے کہ ایک غالب اکثریت جو ہے مسلمانوں کی جا رہی ہے، اس میں چند ایک جو ہے نا اگر مشرک بھی چلے گئے ہیں تو اس سے کوئی حرج کوئی نہیں ہو جاتا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ اصل میں مسلمانوں کے لیے جو ہے نا یہ آیت آئی ہے۔ اس کو پھر بعد میں جب ہم اس کو جوڑتے ہیں اگلے جو ہے نا وہ آیا کے حصے کے ساتھ، وہ اور خوبصورتی کے ساتھ یہ نکھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور اس کے بعد کہا کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ یہ بر کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اصل میں یہ ترجمہ تو ہم اس کا نیکی کر لیتے ہیں، لیکن یہ اصل میں کون سی نیکی ہوتی ہے؟ یہ نیکی وہ نیکی ہوتی ہے جس میں آپ اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہوتے ہیں، جیسے جو اولاد ہے اپنے والدین کی جو ہے نا ذمہ داریاں ادا کرتی ہے، احسان کے ساتھ معاملہ کرتی ہے، تو بر اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی عقد ہے، آپ کے اوپر کوئی عہد معاہدہ ہے، آپ اس کو خوبی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو وہ بر اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ بر جو ہے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں آتی ہیں جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ کے جو ہے نا جو نیکی کے کام ہیں، ذمہ داریوں کے کام ہیں، ان کی ادائیگی میں جو شریعت کی طرف سے عائد کی گئی ہیں ان کو ادا کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو والتقویٰ، اور یہ کہ خدا خوفی کو سامنے رکھتے ہوئے معاملات کو نمٹاؤ۔ اور اس کے بعد ولا تعاونوا علی الاسم، اور اگر کسی جگہ پہ حق تلفی کا معاملہ آ جاتا ہے، یہ اسم اور عدوان جب مل کے آتے ہیں معنی تو ایک ہی ہوتا ہے ان کا۔ اسم کا معنی ہوتا ہے حق تلفی، حق تلفی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی حق ادا کرنا تھا۔ اس کی مثال میں دیتا ہوتا ہوں کہ ایک آپ نے قرض دینا ہے اور اس کے بعد قرض کو دبا دیں، تو یہ اسم ہوگا، یہ حق تلفی ہوگی۔ کسی کا حق مار دیا ہے، اس کا جائز حق تھا، آپ نے حق ادا نہیں کیا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ عدوان اس کو کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی حق نہیں تھا کہ آپ آگے بڑھ کے کوئی گڑبڑ کرتے، آپ آگے بڑھ کے کسی کا حق مار لیتے، آپ نے آگے بڑھ کے یعنی کسی بیوہ کا مال ہے، کسی یتیم کا مال ہے، اور وہ مال کسی اور کا مال ہے، آپ نے ناجائز قبضہ کر لیا، اس پہ جا کے ناجائز اس کو جو ہے نا ہتھیا لیا، اس کو عدوان کہتے ہیں، اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ اور حق تلفی وہ ہوتی ہے کہ جو آپ نے حق دینا تھا کسی کو وہ حق نہیں دیا، اس کو حق تلفی، اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ عدوان اس وقت کہتے ہیں کہ جب آپ کا کسی اور کا جو ہے نا مال تھا، کسی اور کی کوئی چیز تھی، آپ نے زبردستی جا کے اس پہ قبضہ کر لیا ہے، اس کو زیادتی کرتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ اسم اور عدوان کی صورت میں آپ نے کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، یہ اصول ہے جو مسلمانوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ یہ کہ اب مسلمان معاشرہ وجود میں آ چکا ہے، اور یہ اس معاشرے کا اب جو معاملہ ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اب قوم اور قبیلہ کے سامنے نہیں رکھنا۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بھی چیز تعصب کی سامنے آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی قوم کی جو ہے نا جا کے نصرت کرنی ہے، مدد کرنی ہے، ساتھ دینا ہے، خواہ وہ سیاسی پہلو ہو، خواہ وہ مذہبی پہلو ہو، یا عمومی طور پہ دیکھنے میں چیزیں آتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی جہاں ظاہر ہے یہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ جب بھی کوئی سیاسی پہلو ہو، کوئی دینی پہلو ہو، مذہبی پہلو ہو، یا کوئی علاقائی پہلو ہو، یا کوئی مطلب اپنے خاندانی پہلو ہو، تو ہم ہمیشہ جو ہے نا اپنے خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو جو ہے نا وہ یعنی اس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کی مدد کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو پہلو ہے یہ ایک فطری چیزیں ہوتی ہیں، وہ اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن قرآن مجید جو چیز کہہ رہا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب تمہارے تعصبات جو ہے نا اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، یعنی یہ کہ کسی کے ساتھ نصرت کرنی ہے، کسی کے ساتھ مدد کرنی ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ وہ تمہارا قبیلہ نہیں ہے، تمہارے جو ہے نا وہ خاندان نہیں ہے، وہ تمہارا ملک نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، تو وہ اس کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے نا بر اور تقوی ہونی چاہیے۔ تمہارا یہ کہ میرا قبیلہ ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، یا میری قوم ہے میں نے اس کا ساتھ دینا ہے، یہ بنیاد نہیں ہونی چاہیے۔ اس بنیاد کا کلا کما تمہارے اندر سے جو ہے نا ہونا چاہیے، اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنی ہے، تو اس کی بنیاد صرف اور صرف جو ہے نا نیکی اور تقوی کے کاموں میں ہے۔ اور اگر جو ہے نا کوئی غلطی کرتا ہے، کوئی اسم کرتا ہے، کوئی حق تلفی کرتا ہے، کوئی زیادتی کرتا ہے، اور حق تلفی اور زیادتی کرنے والا تمہارے خاندان کا بندہ ہے، تمہارے قبیلے کا بندہ ہے، تمہارے ملک کا بندہ ہے، تو آپ نے اس سے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی گئی ہے کہ آپ نے اس سے ہاتھ اٹھا لینے ہیں۔ اگر وہ شخص جو ہے نا وہ نیکی اور تقوی کا کام کرتا ہے تو آپ نے نیکی اور تقوی میں آگے بڑھ کے جو ہے نا ہاتھ بٹانا ہے۔ یہ بات ہے یہاں پہ کہی جا رہی ہے۔ اس میں ایک اور بڑا خاص پہلو ہے کہ اگر آپ کا دشمن
जो है ना वो नेकी और तकवे का काम करता है, तो आपने उसके लिए भी आगे बढ़ के हाथ बटाना है। और अगर वो तुम्हारा दुश्मन जो है ना वो इस्म और उद्वान करता है, तो ज़ाहिर है कि वो तो अंडरस्टूड होती है, वो तो कोई भी उसका साथ नहीं देता। लेकिन अगर तुम्हारा दुश्मन जो है वो नेकी और तकवे का काम करता है, तो आपने उसके लिए भी जो है ना ज़ाहिर है कि हाथ बटाना है, जाके उसका उसका साथ देना है। और अगर आपका अपना कबीला, आपका अपना मुल्क, आपके अपने लोग जो ना इस्म और उद्वान पे तुल जाते हैं, तो आपने उनसे हाथ उठा लेना है। जब ये बात कही गई, तो ये ज़ाहिर है कि बड़ी अहम बात है, बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट है और बड़ी अहम जो है डायरेक्शन मुसलमानों को दे दी गई है। मुसलमान क जहाँ कहीं भी होंगे, कतई नज़र इसके कि उसके सराउंडिंग में मुसलमान हैं या गैर मुस्लिम हैं, उसने हमेशा जो है ना तकवा और बिर को सामने रखना है। ये बिर और तकवा यानी ये आपके अंदर ये चीज़ें हैं। अगर कोई अच्छी चीज़ आपके इर्द-गिर्द माहौल में कोई गैर मुस्लिम भी कर रहा है, तो आपने उसका साथ देना है। और अगर जो है ना कोई ज़्यादती और हक़ तलफ़ी का काम आपका अपना कबीला, आपके अपने लोग जो है ना कर रहे हैं, तो आपने उससे हाथ उठा देना है। ये बड़ी अहम चीज़ है। और ये कि ज़ाहिर है कि हमारे क्या सियासतदान हों, क्या हमारे जो है ना लिखने वाले हों, बोलने वाले हों, माशरे के अंदर जो है ना जो राय आमा जो हमवार कर रहे हैं, वो लोग हों, क्या वो इस चीज़ की पैरवी कर रहे होते हैं? हम देख रहे होते हैं कि बाज़ औक़ात उनके अंदर वो तासुब जो है ना वो बहुत नुमायाँ हो जाता है। उससे हम अपने आप को बचाना है, उससे अपने आप को जुदा करना है। हमेशा नेकी और तकवे के कामों में साथ देना है और हमेशा जो है ना जहाँ पे हक तलफ़ी और उद्वान की बात आएगी वहाँ से पीछे हट जाना है। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला की ज़ात से डरते रहो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। बेशक अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो सख्त सज़ा देने वाली है। ये सख्त सज़ा देने वाली है यानी ये कि जिस मिसाक में तुम्हें बाँधा जा रहा है, जिस अहद-मुहद में बाँधा जा रहा है, इसको अब आपने पूरा ख़्याल रखना है। अगर आप इसको तोड़ोगे, जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, तो इसका एक नतीजा होगा। वो नतीजा तुम्हें दुनिया में भी भुगतना है और आख़िरत में भी भुगतना है। ये जो हम सूरह बकरा में जगह-जगह पढ़ आए हैं कि तुमने जब-जब जो है ना अल्लाह के साथ अहद-मुआहदा तोड़ा, तो अल्लाह ताला की ज़ात ने तुम्हें दुनिया के अंदर इसकी सज़ा दी है। ये वो पहलू है कि अगर ए बनी इस्माइल तुमने भी यही काम किया, जिस तरह के बनी इसराइल के लोगों ने किया, तो यहाँ पे भी ख़्याल रखो कि वो सज़ा तुम्हें भी दुनिया में दी जा सकती है। आख़िरत में तो इनफ़रादी तौर पे ज़ाहिर है वो होनी है, लेकिन बहसीत कौम यहाँ पे ख़िताब किया गया है, यहाँ पे जमा के सिगे लाए गए हैं। अगर तुमने ये काम किया, दुनिया के अंदर ये काम किया, मेरी ये शरीयत के जो पहलू हैं, ये हुर्मतें जो मैंने कायम कर दी हैं, इनको तोड़ा कि इसकी सज़ा तुम्हें दुनिया में भी दी जाएगी। और ज़ाहिर है कि हम अब देख रहे हैं कि हमारे मायारात बदल गए हैं। हम हर जो है ना वो इस्म और उद्वान के मामले में अपनी कौमों के साथ खड़े हो जाते हैं, अपने लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे अंदर वो बिर और तक़वे के जो है ना मायारात ख़त्म हो चुके हैं, हमारे अंदर मायारात बदल गए हैं और उसके नताइज में हम देख रहे हैं, ये तो इमीडिएट है। इससे जो पहले की चीज़ें हैं, वो ज़ाहिर है कि वो ये हलाल और हराम की बहस थी और उसके साथ एहराम की जो है ना बहस आ गई, एहराम से मुतल्लिक़ा जो है ना वो अल्लाह के जो शायर हैं, उसकी जो है ना वो बहस आ गई। तो ये तमाम शरीयत के पहलू सामने रखने हैं और इन पे अमल पैरा हो जाना है। अगर जो है ना कहीं-कहीं जो है ना अगर जहाँ-जहाँ भी तुमने गड़बड़ की, उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि तुम्हें उसकी सज़ा मिलेगी। यहाँ पे ख़ास तौर पे जब ये कहा गया था कि इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, एक तरह का हुक्म जो है ना ये बनी इसराइल को भी दिया गया था। सब्त का आपको मालूम है कि उन्होंने जो सब्त का दिन था, उनका सैटरडे का जो दिन था, उसकी जो बेहरुमती की थी, उन्होंने उसके नतीजे में उनको जो है ना दुनिया में उनको अल्लाह ताला की ज़ात ने सज़ा दी थी। तो ये वाला हुक्म जो है इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, ये भी उसी नौइयत का है, सब्त की तरह का है। तो गोया कि ये ख़ास तौर पे आगे चल के जो है ना हम देखेंगे, इसको बड़ी अहमियत दी अल्लाह ताला की ज़ात ने कि इस चीज़ को जो है ना यानी एहराम के वाक़े पे कोई हुर्मतें नहीं तोड़नी, जो हुर्मतें लागू की गई हैं, उनको लाज़मी तौर पे इख्तियार करना है। ये चीज़ें हैं, इसी के साथ आज का ये सेशन हम ख़त्म करते हैं। 2 ही आयत पढ़ चुके हैं। ये ज़ाहिर है कि अपनी नौइयत के लिहाज़ से बड़ी अहम आयत थी। इसलिए मैंने ज़्यादा टाइम लगाया और आगे भी ज़ाहिर है कि आगे कोई 1-2 पैराग्राफ हैं, जिसमें बड़ी गहरी बातें हैं और इसी तरीके से आस्ता-आस्ता जो है ना आगे बढ़ेंगे। तो व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई सवाल हो तो मैं ले लेता हूँ। थैंक यू शुक्र साहब।